Today's and to our honorable speaker, C. Abhishek sir, and all my professional colleagues. I, C. Priya Gupta, take the opportunity to welcome you all in today's webinar on the topic intricacies involved in tax audit and ITR filing. I think attendees are requested to write down their queries in the chat box, and our team shall be dealing with them at the end of the session. Now, I take the privilege to introduce our speaker by word, C. Abhishek Jain sir. He is a practicing chartered accountant at Delhi, and currently he is a partner at Kailash Chand Jain Company. He has delivered number of seminars on direct law matters like faceless assessment, ITR, tax audit report, taxation of securities, various matters related to TDS, accounting and taxation for derivatives, changes covered by Finance Act, taxation of gifts, and tax planning, etc. He has delivered number of sessions on MSME covering various topics like registration, benefits, scheme for MSME, MSME policy, and regulation. He is also co-opted member for NIRC of ICAI. He is on the panel of Yes Bank as a speaker for various law and legal matters. He has been honored by various government, private, and social organizations for contribution in the field of taxation and for creating general awareness for various aspects of taxation like Indian Post, Department of Publication, DECIL, Honda, Trust, etc. He has been speaker for various groups of co-professionals, various corporate houses, and social forums. He has contributed in finalizing of internal audit checklist published by ICAI as being member of Internal Audit Standards Board ICAI. He is also a motivational and public speaker. He has authored many books like Direct Tax Laws and International Taxation, Tax Management and Practice, Advanced Tax Laws and Practice. He is rendering his professional services as being consultant for various corporate like PSUs, MNCs, etc. मैम मैं रोक रहा हूँ, मेरे ख्याल से आगे बढ़ना चाहिए अपन को. That's fine enough. Okay, as you say, sir. So now it's over to you. Thanks a lot, Priya ji, for your wonderful words. Even सर्दियों की जब सुबह होती है, it's very difficult to have even professional gathering and deliver the presentation session. And thanks a lot, ICAI Jaipur branch, for it's again a privilege for me to address all the colleague friends जहाँ पे मैं पला बड़ा उस राजस्थान की मिट्टी से. And thanks to chairman, vice chairman and secretary of ICAI Jaipur branch, साकेत जी को धन्यवाद. सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग वो यहाँ पे हैं. इवन उनके कंधों पे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. इन स्पाइट ऑफ दैट इज हियर. एंड ऑल द अटेंडीज जो इस सेशन में है, नॉट इवन सेशन, इट्स अगेन ओनली डिस्कशन पार्ट, क्योंकि इतने सारी चेंजेस हैं. और फॉर बीइंग अ प्रोफेशनल हम सभी के लिए एक चैलेंज है कि कैसे कोप अप किया जाए इन सब चीज़ों को. और मैडम, मैं हमेशा कहता हूँ, बाहर वाली मैडम सुनती नहीं है, घर वाली तो सुनती ही नहीं है, और हमारी बाहर वाली एफएम मैडम भी नहीं सुनती है. बट स्टिल हम प्रोफेशनल के साथ चैलेंजेस. उड़ने दो मिट्टियों को, कितना उड़ेगी, आएगी जमीन पर ही जब आंधी थमेगी. कहने का मतलब यही है कि कोई बात नहीं, हम सब एक साथ हैं और यही फोरम है कि जहां पे हम डिस्कस करके आपस में कई इश्यूज रिजोल्व कर पाते हैं. और वर्चुअल होने के कारण ये बड़ा आराम हो गया. फिजिकली इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि हम क्वेश्चन खड़े होके पूछ पाए, पर वर्चुअली हम बड़े आसानी से पूछ सकते हैं. चैट बॉक्स पे हम डाल सकते हैं. ये बड़ा फायदा है. हम बात करते हैं इंटरकेसेस इन्वॉल्वड इन द ITR एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट. डेफिनेटली आई विल इवन टेक अप वेरियस क्लोज ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, जहाँ पे हमें कई चीज़ें ध्यान रखने की होती है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक अप ITR. बहुत ज़्यादा लंबा मैं नहीं लेने वाला, बिकॉज वी नीड टू टेक केयर ऑफ द टाइम लिमिटेशन एज वेल. और आज तो वैसे भी साकेत जी
हमारे इंस्टीट्यूट के लिए एक वो बोलते हैं फर्स्ट राउंड तो आने वाला है। बहुत सारी धुंधली पिक्चर रहेगी बट क्लियर कल तक शाम तक हो जाएगी। तो सभी मोस्टली मेरे ख्याल से तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, जहां हमें रिटर्न का एक टाइम लिमिट भी सामने है, पर हमारे इंस्टीट्यूट के नए जो हेम हैं वो भी आने वाले हैं। स्टिल बहुत सारी चीजें हैं, हम इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं विदाउट टेकिंग मच टाइम। ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न की जब हम बात करते हैं प्रिया जी, तो पहले तो बात आती है पोर्टल की। पोर्टल को जब आप ओपन करते हैं तो वर्जन आता है 2.0। मेरे ख्याल से वो गलती से कर दिया, उसको 0.2 होना था, राइट। फिर वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2 पे आना चाहिए था, वो 0.2 से सीधा उन्होंने 2 पे रख दिया। तो मेरे ख्याल से कहीं वो मिस्टेक रही होगी। जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से, उनको ये भी लिख देना चाहिए कि इस वर्जन का नाम 0.2 ही रखा जाए, ज़्यादा बेटर है। बट स्टिल नाउ थिंग्स आर स्मूथली सेटल्ड। कई जो इश्यूज हमारे इनिशियली, इवन अभी भी कई इश्यूज आ रहे हैं, हम ITR में उनकी भी बात करूंगा, टेकअप करूंगा कि जो इश्यूज हम फेस कर रहे हैं और किस तरीके से हम उनको एड्रेस कर पाए। तो मैं शेयर करता हूँ स्लाइड और वन बाय वन हम कवर करते हैं इन सभी चीजों को। रिया जी गिव मी ए नोट, मेरे ख्याल से विजिबल है। It's visible, sir. राइट। नाउ सबसे पहले बात आती है कई इश्यूज, मेरे पास कई क्वेरीज आई और मैंने जो फेस की उनको सबको कंपाइल किया और वन बाय वन मैं टेकअप करता हूं, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम इस पे नहीं लेंगे। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पे हमें बहुत सारे क्लोजेस, कोशिश करेंगे जितना ले पाए हम उतना ले पाएंगे। बात आती है इश्यूज आए जो फेस किए गए हमारे मेंबर्स ने, उनमें से कई इश्यूज हैं जो मैंने यहाँ पे रखे हैं। इनकरेक्ट अपलोड ऑफ JSON फाइल ऑफ वन पेन इन द सम अदर पेन। आप समझिए गलती से ये भी अपलोड हो रहा है। इवन अर्लियर वी हैव सीन इन आवर ओल्ड पोर्टल कि भैया आप अगर गलत से भी पेन दूसरा जाता था तो वो एरर शो करता था। बट स्टिल ये नए पोर्टल पे ये चीजें आ रही है। गलती से हमारा अपलोड हो गया तो एक बार प्रिंट आउट जो आ रहा है उसको चेक जरूर कर लीजिएगा बिना एरर। कल को पता लगा हमें प्रिया जी का रिटर्न फाइल करना था, पेन नंबर साकेत जी का लग गया, सबमिट हो गया साहब, और वो एक्सेप्ट भी कर रहा है। बट स्टिल मेरे ख्याल से अब शायद ये चीज हो सकता है कि नहीं, क्योंकि काफी मैंने भी ट्वीट किए, कई लोगों से भी प्रेजेंटेशन, सब लोग अपने अपने हिसाब से प्रेजेंट कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम सेटल हो जाए। वैलिडेशन ऑफ ITR फॉर्म्स, कई बार ऐसा भी हमने देखा कि ITR इमीडिएट वैलिडेट हो रहे हैं, प्रोसेस भी हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, बट इन स्पाइट ऑफ दैट उसके बावजूद भी कई जगह वैलिडेशन में एरर आ रहा है। मल्टीपल ITR अंडर सेक्शन 139(1) आप फाइल कर सकते हैं। आप देखिएगा ये जो कोडिंग है उसके अंदर ये भी लूप होल है। 139(1) में एक ही ITR होना चाहिए, फिर 4-5 में आपका जा सकता है पर उससे ज्यादा नहीं जा सकता, राइट। तो कई लोग रिवाइज करने की बजाय उसी में ओरिजिनल रिटर्न में जा रहा है। क्योंकि देखो क्या है, आप कितने भी इनोवेशन कर लो पर हमारा दिमाग जहां तक चलता है, एक CA का दिमाग चलता है और एक बिजनेसमैन का दिमाग चलता है, वो बोलता है जी साहब रिवाइज करने की जरूरत नहीं, आप तो 139 नया पोर्टल 139(1) पे दोबारा जाने दो। तो पता लगा वो 139(1) पे दोबारा जा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये चीजें भी हो रही है। अनेबल टू डाउनलोड इनकम टैक्स एक्नॉलेजमेंट्स, अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही। और अभी बीच में स्मूथ था पोर्टल, पर फिर बीच में हमने देखा अभी 8-10 दिन पहले भी ये इशू आ रहा था कि रिटर्न सबमिट हुआ, एक्नॉलेजमेंट दिखाई नहीं दे रहा, मेल आ रही है उसकी। बट घबराने वाली बात नहीं, आ जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। रिटर्न फाइल हो गई, मेल एक्नॉलेजमेंट आ गई, सॉरी मेल आ गई तो एक्नॉलेजमेंट भी डाउनलोड हो जाएगा। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन जो इनकम टैक्स जो यूटिलिटीज है उसमें बड़े चेंजेस अभी भी हुए 2-3 दिन पहले। आप देखिए अगर आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो हर बार 1-2 दिन में एक आता है कि भैया अपडेट करिए। अब वो अपडेट क्या है, कई बार तो हमें पता भी नहीं लगता, बस वो अपडेट पूछता है, हम अपडेट कर देते हैं, साहब हो गया, ठीक है, चलना चाहिए, रिटर्न अपलोड होना चाहिए हमें। वैसे मैं अगर सिंपल सी बात कहूँ, वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग सॉफ्टवेयर प्रिया जी। रीजन बीइंग, हमें अभी क्या, हम इतने यूज टू हो गए हैं कि जैसे कैलकुलेटर पे हमारी डिपेंडेंसी रही। अब हम 234 ABC का अगर कैलकुलेट करना हो हमें इंटरेस्ट, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस कि भैया वो फॉर्मूला लगता कैसे है, वो गलत आ रही है, कैलकुलेशन भी गलत आ रही है 234 ABC की। बट स्टिल वो जो सॉफ्टवेयर ले रहा है दैट्स फाइन इनफ। बट एक दो हमें रैंडम बेसिस पे हर साल मैं ये कहता हूँ एक बार देख लेना चाहिए कि क्या कर रहा है। क्योंकि देखो हम देख सकते हैं कि जो कई सारी चीजें हैं जैसे कि 112A के प्रोविजंस हैं, कई बार जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अलग से टैक्सेबल होता है 250 के अंदर, वो मिनिमम
चार्ज नहीं होता। तो कई बार सॉफ्टवेयर में अगर कहीं भी कोडिंग में ऊपर नीचे हो, पता लगा उस पर भी टैक्स स्लेब रेट में ही लग गया। कई चीजें जो हमें सॉफ्टवेयर पे बिल्कुल डिपेंडेंसी है हमारी, बट स्टिल वी शुड हैव अ स्लाइट व्यू ओवरऑल कि प्रॉपर तरीके से जा रहा है। लॉगिन इश्यूज आ रहे हैं कई जगह, बीच में 2-3 दिन तो बड़ा दिक्कत रही है हमारे, बट स्टिल टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेसिंग एंड जनरेटिंग इवन आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ ITR ऑन पोर्टल। बट ये आ रहा है रिफंड में भी कई जगह मेरे को पता लगा कि 2 दिन के अंदर रिफंड भी आ गया। अब पता नहीं वो रेंडमली इशू कर रहे हैं और वो हाईलाइट भी हो रहा है कि साहब हमें इमीडिएट रिफंड मिल गया, साहब इतना अच्छा चल रहा है। बट स्टिल देखो हम आपस की बातें कर रहे हैं, कितना अच्छा चल रहा है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। गवर्नमेंट दावे तो कर रही है 3,58,00,000 फाइल हो गए, 3,58,00,000 तो हम डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे साहब। अब मत करिए, क्या हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। हम हमारी ड्यूटी निभाते रहे, वी आर द पार्टनर इन द नेशन बिल्डिंग, वो करते रहेंगे। भले ही हमें OT भी पढ़ना हो, हमें कैप्चा भी पढ़ना हो, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट लेने के बाद भी हम वो कर रहे हैं। स्टिल बहुत सारी चीजें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेसिंग थी। इनकम टैक्स रिफंड पेबल इज शोन एज अवेटेड, ये लिखा हुआ आ रहा है एक्चुअली पोर्टल पे कि अवेटेड है। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कुछ वही है कोडिंग पीछे, इन्फोसिस है, आप समझिएगा। इन्फोसिस पूरा डील कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा उसकी कंपेटिबिलिटी पे कोई इश्यूज नहीं है, बट स्टिल जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ वह कहीं ना कहीं हेस्टी के अंदर हुआ, उसी के लिए हम ये सब चीजें देख रहे हैं। मिसमैच इन पेन डेटा एंड देयर इज, हाँ ये एक और कहानी है कि वो कई बार ऐसा आया कि पेन डेटा नोट मैचिंग। इवन कई बार हम जब नए क्लाइंट का लॉगिन भी बना रहे हैं कि हमें पोर्टल पे सबसे पहले उसका प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ता है, वहां भी ये बोलता है कि साहब ये तो डेटा ही मिसमैच है, जबकि इन स्पाइट ऑफ दैट देयर इज नो मिसमैच ओवरऑल। वेट करिएगा। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, कहीं भी अगर आपको लगे सेटबैक है कि चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप ग्रीवियंस इमीडिएट रेज करिए। वी शुड हैव प्रॉपर एविडेंस विद अस व्हेन वी विल फाइट अगेंस्ट दीज इशू। गवर्नमेंट के लिए कुछ नहीं जाता, वो सीधा ये कहते कि साहब हमें कुछ पता नहीं है। बलि का बकरा या प्रोफेशनल और बिजनेसमैन बनता है। फाइलिंग ऑफ रिफंड री इशू रिक्वेस्ट आ रहा है, इवन रेक्टिफिकेशन भी मैंने आगे लिया, उसमें भी कई दिक्कतें आ रही है। इशू क्या आ रहा है मैं बताता हूँ, आता हूँ रेक्टिफिकेशन पे आता हूँ, उस पर भी आता हूँ। DSC वैलिडेशन इश्यूज आ रहे हैं, अभी थोड़े से सेटल डाउन हुए। बैंक अकाउंट वैलिडेशन इश्यूज आ रहे हैं। न्यू पेन रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने आपको बताया वो भी इश्यूज आ रहे हैं। डेटा सेविंग इश्यूज, कई बार तो डेटा भी सेव नहीं हो रहा। रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन, देखो यहाँ बहुत सारे इश्यूज में इससे रिलेटेड मैं आपको जरूर हम डिस्कस करेंगे। हो क्या रहा है, कई बार TDS का आप भी फेस कर रहे होंगे। TDS जो ऑलरेडी डिडक्टेड है, इन स्पाइट ऑफ दैट इट इज शोइंग अंडर 26 AS 143(1)(a) intimation is not picking up the TDS data, and there is again a mismatch, and डिमांड के नोटिसेस भी आ चुके हैं। और आपको मैं बता दूं, जो कैरी फॉरवर्ड का लॉसेस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं, वहां भी इश्यूज फेस किए गए हैं। पर डे बिफोर यस्टरडे देयर वाज अ कॉल फ्रॉम सम FMCG CFO कि सर ऐसा मेरे में इशू आया, मैंने तो TDS कैप्चर नहीं किया था, तो वो उसके लिए मैंने रेक्टिफिकेशन डाला, पता लगा वो तो ठीक हुआ नहीं, दूसरा एक और इशू आ गया। कुछ लॉस आ रहा था, मेरा शेयर्स थे वो भी अब पिक नहीं कर रहा, तो उसके कारण उसकी भी डिमांड क्रिएट कर दी। सर अब करना क्या, आप मेरे को बता दीजिए। मैंने कहा भाई अब क्या कर सकते हैं, वी हैव टू बियर एट 50-60 हजार रुपए की डिमांड। बोला नहीं सर लड़ेंगे, देखा जाएगा। आप देखिए, व्हाई वी हैव दीज digitization, this faceless assessment to smoothen the process rather than it create a very हैंकी फेंकी सिस्टम। आप समझिए, जो चीजें होना ही नहीं चाहिए वो चीजें हो रही है। और उनके कारण क्या आ रहा है, वो हमें कंप्लायंस में काफी प्रॉब्लम आ रही है। हम क्या कर रहे हैं, एक रिटर्न, साधारण सा रिटर्न है सैलरीड वाला, वो भी 500, 1000, 1500 रुपए बड़ी मुश्किल से देता है प्रिया जी। कभी उसका रेक्टिफिकेशन आ गया, उसका रिवाइज करो, पता लगा इंटरेस्ट शो नहीं किया, उसका फिर रिवाइज करो। 2000 रुपए की तो कॉस्ट इनकर कर चुके होते हैं अपन उस पर, 1500 रुपए भी वो 2 साल बाद में देता है, आप समझिएगा। तो रादर देन, कई बार लिखा भी जा चुका है गवर्नमेंट को कि भैया ये सब चीजें स्मूदन, और खास तौर पर रेक्टिफिकेशन वाले इस इशू।
जबकि वहाँ कहीं मिसमैच ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी ये चीज़ें आ रही है, बट स्टिल वी आर अवेटिंग फॉर द गुड कि भैया अच्छा होगा। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि अगर रेक्टिफिकेशन में ऑनलाइन में नहीं हो रहा, रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप फिजिकली उसको एक्नोलेज कराएं आपकी जुरिस्डिक्शनल बोर्ड से, एसएससी का जो जुरिस्डिक्शनल बोर्ड है। अभी उनके पास कुछ ज्यादा काम नहीं है, वो बैठे हैं, क्योंकि क्या करेंगे, पहले तो असेसमेंट करते थे, अब तो जुरिस्डिक्शन वाले सोच रहे हैं कि कोई आ जाए तो काम कर दें। गेटिंग माई पॉइंट। तो आप एक्नोलेज जरूर कराएं उन सब चीजों को। फाइलिंग ऑफ आईटीआर परसुअल टू नोटिस 139 डिफेक्टिव वाले में भी ऐसे इश्यूज आ रहे हैं। और स्पेम में भी कई जगह ऐसा भी पता लगा कि पता भी नहीं लग पा रहा, कई जगह स्पेम में भी मेल चली गई और एसएससी को मालूम ही नहीं, जो 30 डेज 15 डेज अलॉट किए गए, कि वो कब लैप्स हो गए, और लैप्स होने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। हम इन चीजों में उलझ ही रहे थे कि बीच में ही गवर्नमेंट एक और चीज के साथ में आ गई थी साहब, AIS। भैया पहले वाली चीजें कम थी क्या, एक और आप लेके आ गए। मैं मेरे एसएससी का इशू बता रहा हूँ साहब, वो मेरे को AIS नो डाउट इट्स अगेन अ वेरी ग्रेट थिंग, बट आप चलते हुई प्रोसेस जो आधी हो चुकी है रिटर्न्स की, उसके बीच में आप ये और कहते हो कि साहब आधे रिटर्न तो, मतलब ऑलमोस्ट हम इस सिचुएशन पे कि आधे रिटर्न तो हमारे जा चुके हैं, और आप कहते हो कि साहब आप AIS को भी चेक करना है। भैया वो जो रिटर्न गए, या तो आपको पहले ही आना चाहिए था। अब AIS बीच में आपने अप्लाई, पता लगा कि भाई साहब उसकी रेंट इनकम भी आ रही है, उसने तो शेयरों में भी काम कर रखा है, वो बड़ा इंस्पायर हुआ 1992 हर्षद मेहता से स्टोरी। रिस्क है तो इश्क है, तो भाई साहब आप देखो हर एक रिटर्न में आजकल शेयरों का ट्रांजेक्शन आता है साहब। नहीं साहब देखो, रिस्क है तो इश्क है। इंटरटेनमेंट चालू रहना चाहिए, भले ही शेयर 10,000 रुपए के लिए हो, पर वो पूरे दिन देखता रहेगा कि हाँ साहब 500 रुपए कमाए। बीच में आना हमारे सबके लिए एक बड़ी मुसीबत हो गई कि भैया जो ऑलरेडी रिटर्न फाइल्ड है उनकी कंप्लायंस क्या करने, कैसे करना है। अब उनके लिए अलग से हमें वापस से टाइम स्पेयर करना पड़ा। गवर्नमेंट को ये सब चीजें देखनी चाहिए कि आप चलती हुई ट्रेन में नई गाइडलाइंस नहीं ला सकते कि भैया आपको फिर ये कंप्लायंस भी करनी रहेगी। तो ये AIS पर आपको मैं बता दूं कि गवर्नमेंट अब इस कह रही है कि भैया आप सीधा 26A से मैच कीजिए, ये तो आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए, पर आई डाउट। सबसे ज्यादा इशू शेयरों के ट्रांजेक्शन में आए, पर शेयरों के आप लेट इट बी, उसको छोड़ दीजिएगा, बट स्टिल मैं आपको कह रहा हूं अदर इंफॉर्मेशन जो कैप्चर हुई है AIR में, एडवाइज्ड ऑल ऑफ यू प्लीज कैप्चर ऑल द इंफॉर्मेशन व्हाइल फाइलिंग ITR। और इवन मैं इतना रिकमेंड करूंगा, आज का टाइम जो ऐसा, SSC का कोई भरोसा नहीं, अटैच AIS along with your computation and send it across to the client. सर प्लीज चेक इट आउट, ये इंफॉर्मेशन थोड़ा मिसमैच आ रहा है, बताए वैसे हम फाइन कर देंगे। लेट इट बी, हमने भेज दिया, वो नहीं करवा रहा, हमें क्या करने है। ऐसे क्लाइंट भी मिलेंगे आपको। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं ये बता रहा हूँ, और भी आप कम अक्रोस हम लास्ट में देखेंगे भी, 15 मिनट लास्ट की कोशिश करेंगे कि हम इन सब चीज़ों में डिस्कशन में लेंगे, क्योंकि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का हमारे साथ एक और डिलीवरेबल्स है जो हमें डिस्कस करना है। ये कई इश्यूज हैं जो ITR में, ITR के अंदर अब की बार 115 BAC भी है, उसको भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि BAC जब हम टिक अनटिक करते हैं तो उससे भी कई चीजें हमारी विजिबल है और दिखाई भी नहीं देती। नाउ लीगल हेयर्स का आप सॉर्ट आउट है मैटर, न्यू पोर्टल के अंदर प्रॉपर तरीके से फाइलिंग हो रही है। लीगल हेयर्स में आप अप्लाई करिएगा, अगर कोई भी आपका सर्वाइवल लीगल हेयर है उसके अकाउंट से ही वो रिटर्न जाने वाले हैं। नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड टेकअप, क्योंकि ये कई इश्यूज हैं, हो सकता है इससे अलावा इनके अलावा भी कई इश्यूज हैं जो हम ITR के अंदर देख रहे हैं। नाउ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, अब देखो जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इंस्टीट्यूट itself emphasize to improve the quality of tax audit report. While uploading, submitting the tax audit report, we all should know the implications. We all should cover our risk, whatever it possible, wherever is possible.
तो हाउ, कई ऐसे चीजें हैं जो मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लूंगा, पूरे क्लोज लेना पॉसिबल नहीं होगा, पर कुछ एक क्लोज जो मेरे को लगता है हम डिस्कस कर पाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो, सबसे पहले मैं क्लोज को आपको रीड आउट कर रहा हूँ। यहाँ क्लोज में भी कई पार्ट डिस्कशन है। कवरेज ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ एवरी पर्सन, लेट मी टेक द नोटेशन। एवरी पर्सन मीनिंग देयर बाय जो भी बिजनेस कर रहा है उसके लिए एप्लीकेबल है। एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, अगर उसका, मैं बड़ा सिंपलर फॉर्म में जा रहा हूं, इसमें मैं रीड आउट नहीं कर रहा हूं जो इसमें लिखा हुआ है, बट कई जगह जो मेरे को डिस्कशन वाला पॉइंट है वो मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। 44 AB A, क्लोज ए, वो ये बोलता है इफ योर टर्नओवर, ग्रोस रिसिप्ट, राइट, सेल्स एक्सीड 1 करोड़ रुपीस, राइट, फाइन इनफ, वो एक्सीड है, बट एक प्रोविजो भी आ गया इसके अंदर, आप देख सकते हैं इसी साल से एप्लीकेबल है, मीनिंग देयर बाय फाइनेंशियल ईयर 2021, कि अगर आपका टोटल रिसिप्ट में, मैं बड़े सिंपलर लैंग्वेज में आपके सामने रखूंगा, मैं कोई जो लिखा हुआ उस पर नहीं जा रहा, टोटल रिसिप्ट जो आपके पास आई बैंक में और कैश में, उसका टोटल किया और आपने देखा उसमें कैश का कंपोनेंट 5% तक ही है। उसी तरीके से टोटल हमारा जो आउटफ्लो है, पेमेंट है, उसका आपने टोटल किया, उसमें देखा कि मेरा टोटल आउटफ्लो में 5% ही है, 5% तक ही है कैश का कंपोनेंट, मतलब जो मैंने पेमेंट किया उसमें कैश का पेमेंट वो केवल 5% तक ही है। इन दैट केस आपको 10 करोड़ तक ऑडिट नहीं करवानी। मैं आपको फिर कह देता हूं, ये 5 करोड़ की लिमिट अब 10 करोड़ हो गई है। कल भी मेरा इवन किसी का फोन था, जयपुर से ही फोन था, जो 5 करोड़, मैं फिर कह रहा हूं ये एप्लीकेबिलिटी 10 करोड़ की आ चुकी है 2021 से ही। तो आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा और 10 करोड़ की लिमिट पे फोकस करिएगा। नाउ, अब इतना आसान नहीं है कि ये 10 करोड़ इजीली फुलफिल हो जाए, क्योंकि रीजन क्या है, 10 करोड़ के अंदर जो, जब बिल आया तब तक तो ठीक था, पर बिल के बाद में जब एक्ट आया तो वहां पे एक और प्रोविजन ऐड कर दिया गया। उसमें बोल दिया गया, क्या बोला गया उसमें, बोला गया, आप देखिए लास्ट लाइन में रीड आउट कर रहा हूं, provided further that for the purpose of this clause the payment or receipt as the case may be by a check drawn, mind it, on a bank or by a bank draft which is not account payee, getting my point, which is not account payee, shall be deemed to be the payment or receipt as the case may be in case, अगर ये account payee नहीं है तो इनको ये मान लिया जाएगा कि ये कैश में ही है। अब मेरा क्वेश्चन इस पे आता है, आप समझिएगा क्वेश्चन क्या था। आपके पास पेमेंट आया, आपको मालूम नहीं अकाउंट पे ही है या क्या है, रिसिप्ट और पेमेंट मालूम नहीं चल रहा आपको कि कैसे पेमेंट आया, जो भी है, क्लाइंट भी नहीं कहता आपको। हमें बीइंग अ प्रोफेशनल ऑडिट करनी कि नहीं करनी है, तो फिर क्या कुछ एडिशनल हमें कंप्लायंस, आप सबसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। चैट बॉक्स इज ऑन, आई बिलीव चैट बॉक्स ऑन, आप राइट कर सकते हैं, राइट कर ही रहे हैं। मेरे ख्याल से बीच में शायद फोन आया, शायद आप प्लीज गिव मी ए नोट। अच्छा, स्क्रीन इज नॉट मूविंग, इज इट, स्क्रीन नहीं आ रही क्या, मूव नहीं हो रही? प्लीज लेट मी नो, प्लीज राइट ए मैसेज। सर ओनली फर्स्ट स्लाइड दिख रही है, बाकी आगे नहीं। वेट फॉर अ वाइल, मैं जस्ट चैट बॉक्स ही ऑन किया, मैं स्टॉप करता हूं, अब मैं आगे बढ़ता हूं। नाउ, यस सर, विजिबल। थैंक यू। नाउ अभी हम बात कर रहे हैं, मैं वापस थोड़ा सा फास्ट रिपीट करता हूं। मैं 44 AB के
एक क्लोज में हूँ जहाँ पे कहता है 1 करोड़ से एक्सीड होता है तो टैक्स ऑडिट है, उसके अंदर एक प्रोविजो ऐड हुआ 21-22 असेसमेंट ईयर के लिए जो हमारे लिए एप्लीकेबल है कि अगर आपकी कैश रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट जितनी हुई है, कैश में जो कंपोनेंट है वो 5% से ज़्यादा नहीं है, और अगर टोटल पेमेंट जो है उसमें कैश का कंपोनेंट जो आपने पेमेंट किया 5% से ज़्यादा नहीं है, ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है सर। बट स्टिल ऐसा इजी नहीं है। इसके नीचे एक और प्रोविजो जो आया वो ये आया कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लोज द पेमेंट और रिसिप्ट एज द केस में बी बाय ए चेक ड्रॉन और बैंक और बाय ए बैंक ड्राफ्ट विच इज नॉट अकाउंट पेई shall be deemed to be a payment or receipt as the case may be in cash। अगर वो अकाउंट पे ही नहीं है, आपने रिसिप्ट की, पेमेंट की, तो ये माना जाएगा वो कैश में है। अब यहाँ पे हमारे बीइंग अ प्रोफेशनल हमारे ऊपर कई चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी आती। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सब ठीक है, पता भी नहीं लग रहा है, कैसे पता लगेगा कि अकाउंट पे ही आया कि नहीं आया, तो क्या हमें ऑडिट करनी कि नहीं करनी? अगर करनी नहीं है तो फिर हम किस तरीके से इन सब चीजों को अकोमोडेट करेंगे? मेरा पहला क्वेश्चन, अब पता नहीं लग रहा तो क्या ऑडिट करनी नहीं करनी? एनी आप कर सकते हैं कि ऑडिट करनी नहीं करनी। मेरे ख्याल से मेंबरशिप नंबर देने की जरूरत नहीं होगी क्या? अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 करोड़ से ज्यादा हमारा टर्नओवर है। पहले क्वेश्चन ये है कि क्या हम क्लाइंट से ये मांग रहे हैं कि कैश का कंपोनेंट क्या है, अकाउंट पे चीज़ों की डिटेल्स हम मेल पे या कम्युनिकेट कर रहे हैं, या सीधा ही ऑडिट कर रहे हैं? अगर ऑडिट कर रहे हैं तो कौन से क्लोज में हम जा रहे हैं, आप समझिएगा। मेरा क्वेश्चन ये है, तो क्या बीइंग, अगर आप आंसर दे पाए, क्या हमें कोई प्रिकॉशन रखना है वाइल दिस इज अगेन एंट्री केसेस? हम कह सकते हैं जो पेचीदगियां हैं कि अब प्रोविजन तो बना दिया साहब, इतना इजी नहीं है, तो हमारी तरफ से भी कुछ कम्युनिकेशन होना है या सामने वाले से कुछ लेना है, ये एक समझने वाली बात है। अब देखो मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूँ जो प्रोफेशनली हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि यार ये चीज़ तो हमारे पास होनी ही चाहिए। वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाई दे रही है। आप देखिए, मेरे ख्याल से अब मेरे को एक बार प्लीज गिव मी ए नोट आइदर चैट बॉक्स की मेरे अब स्लाइड चेंज हो रही है ना, मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में हूँ, रेड कलर की। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। नाउ अब आप देखिए, इन केस एन एसएससी इज नॉट श्योर ऑफ हिज रिसीव्ड बीइंग थ्रू अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट। अब हमारा एंगेजमेंट, जब ऑडिट के लिए हमारा एंगेजमेंट होना है तो हम एक सर्टिफिकेट ऑडिटिंग से ले सकते हैं। लैंग्वेज, जैसे एक लैंग्वेज नॉर्मल स्टैंडर्ड लैंग्वेज हम ड्राफ्ट कर रहे हैं कि वी आर नॉट श्योर about the receipt of self consideration of the invoices, checks, draft below rupees 2 lakhs, each to be being account pay or not, as the customer office staff have deposited the same into my bank account without showing to me and management। आप समझ सकते हैं कि भैया कस्टमर ने सीधा जमा करवा दिया चेक। थैंक यू कृष्ण जी। ये लैंग्वेज हमें लेनी रहेगी। अब आप, मेरा क्वेश्चन यहाँ 2 लाख रुपए ही क्यों है? Any significance of that particular 2 lakhs rupees that is I write over here कि जो 2 लाख है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? Can anyone let me know if you remember anything कि भाई ये, आप चाहे तो अगर अनम्यूट का ऑप्शन है तो अनम्यूट भी कर सकते हैं क्योंकि इट्स अगेन अ डिस्कशन मैटर। Rather than I'm just taking through with all of you slides, it's better that we should have some one-to-one discussion either through by chat box or through unmuting yourself. Any idea why this 2 lakhs is covered over here? Exactly, Krishan ji. Perfect. Because of the payment above should be account pay. Anil ji. Krishan ji, you have I think you are directly message me Maheshwari ji, और अनिल जी ने भी बिल्कुल कहा बिकॉज पेमेंट अबो शुड बी अकाउंट पे। नहीं देखो, 2 लाख वाला 269 ST वाला प्रोविजन है। अगर आपने, क्लाइंट खुद कहता है कि अबो 2 lakhs में रिसीव कर रहा हूँ, मीनिंग देयर बाई आप समझिएगा वो क्लास की इंपोर्टेंस, पेनल्टी भी वहां पे है। गेटिंग माई पॉइंट? तो 2 lakhs तो हमने, क्योंकि हमारा SFT के अंदर भी रिपोर्टिंग जाता है उसका। गेटिंग माई पॉइंट?
तो ये 2 लाख तो हमने यहाँ पे, क्योंकि देखो हम कैश में रिसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 2 लाख से ऊपर वाला केस बड़ा दिक्कत वाला है, हमें रिपोर्टिंग भी करनी रहेगी। पर क्या कोई मेरा एक और, अब मैंने यहाँ रिसिप्ट तो लिख दिया, पेमेंट वाला क्लोज तो सर आपने डाला ही नहीं, तो क्या पेमेंट वाला क्लोज भी लिख देना चाहिए, या मैंने इंटेंशनली नहीं लिखा कि भैया जो 5% कैश में कितना हो रहा है मेरे को मालूम नहीं है, अकाउंट पे ही चेक मेरे को मेरे बिना स्टाफ ने दिखाए पेमेंट कर दिया। देखो ऐसा लिखा नहीं जा सकता। नंबर 2, एनी अदर आंसर, 10,000 की लिमिट तो वैसे भी है कैश में, गेटिंग माय पॉइंट, तो वो 40A3 वहां पे एप्लीकेबल है। एंड देन नेक्स्ट, हाँ 10,000 डिसअलाउड है कृष्ण जी, बिल्कुल। आप डायरेक्ट मैसेज आ रहा है, चाहे तो आप एवरीवन भी कर सकते हैं, सो एवरीवन कैन सी योर मैसेज। तो क्योंकि नहीं, अब क्या पेमेंट तो 10,000 से अब वो कर ही सकते हैं कैश में, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं, बट वो डिसअलाउंस होता है, दैट्स फाइन, वो एक अलग चीज है। इस कारण से यहाँ पे लिखना बड़ा, अब मेरा जब एक पर्टिकुलर रिसिप्ट साइड से मेरा काम हो जाता है, बीइंग ऑडिटर, मैं अगर मेरे को क्लाइंट ये लिख के देता है कि जो बिलो 2 lakhs वाले थे मेरे को मालूम नहीं है वो कैश का कंपोनेंट है या नहीं है, तो इस कारण से मैं समझ नहीं पा रहा कि वो 5% में, फाइन इनफ, क्योंकि मेरे लिए बीइंग ऑडिटर और बीइंग एसएससी अगर ऑडिट करानी तो दोनों क्लोज सेटिस्फाइड होनी चाहिए, कैश पेमेंट और कैश रिसीव। जब रिसीव नहीं हो रहा तो मीनिंग देयर बाय फिर मेरे लिए वो अप्लीकेबल ही नहीं है 5% वाली लिमिट, 10 crores वाली, तो मैं ऑडिट कर सकता हूँ एंगेजमेंट। तो हमने क्लाइंट्स ये खुद कह रहा है कि साहब मेरे को नहीं मालूम, आप ऑडिट करिए, राइट, तो वो क्लियर है वो पार्ट। मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा, और हमें क्या कंप्लायंस करनी है इस पर्टिकुलर क्लोज के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरीज है प्लीज लेट मी नो, साइमल्टेनियसली कोशिश करेंगे, लास्ट के 15 मिनट रखेंगे। नाउ बी पार्ट, क्लोज बी जो प्रोफेशन है 50 लाख से ऊपर है, इस पे कोई मेरा ज्यादा डिस्कशन नहीं है। सी पार्ट, इस पे भी ज्यादा डिस्कशन नहीं, कुछ प्रेजम्पटिव हमारी 44A बी ट्रिपल बी, जिसमें अगर हम कहते हैं लोअर इनकम शो करना चाहते हैं जो डिफाइन है उससे ज्यादा, तो भी टैक्सेबिलिटी आएगी। डी क्लोज 44ADA, हम ये कहते हैं कि प्रोफेशनल जो 44ADA ऑप्ट करता है, लिसन मी केयरफुली, क्वेश्चन आप सबके लिए। 44ADA is professional want to show lower income what is specified, lower than what is specified under 44ADA, 50% वो कहता साहब नहीं है, लोअर है, तो उसको टैक्स ऑडिट करवाना रहेगा ऐसी क्लोज में, प्रोवाइडेड साथ ही साथ उसका जो इनकम है दैट शुड बी एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, वो उससे ज्यादा होना चाहिए, 2.5 लाख 3 लाख हम सब जानते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइज कि साहब ठीक है, अब आप समझिए हम एक LLP फॉर्म करते हैं, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे ऊपर 44ADA एप्लीकेबल होगा, प्रोफेशन है, पर LLP फॉर्म करते हैं और उसका टर्नओवर 40 लाख है और हम इनकम शो करना चाहते हैं 10 lakhs, करना चाहते नहीं है इनकम, आप समझिएगा मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक, जो एम्पायर ऐसा करता कि भैया डिसीजन वापस। 10 लाख इनकम इज देयर ऑन द टर्नओवर 40 lakhs, ऑडिट जरूरी होगी? आता हूं सुमित जी, आता हूं मैं एक क्वेश्चन रखा फिर आप वाले केस में आता हूं। मेरा क्वेश्चन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, रिक्वायर योर आंसर प्लीज। LLP फॉर्म कर लिया हम सब ने मिलके, भैया एक बड़ी फर्म बनाएंगे, मोदी जी ने कहा था बिग 4 को हमें मात देनी है, तो हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हमने एक बड़ी फर्म बना दी सा प्रोफेशनल्स की, और अब से यार 40 लाख का टर्नओवर अभी शुरुआती है, आप समझिए 3 महीने हुए बने हुए, बड़ी फर्म है, 40 करोड़ भी होंगे, तो 40 लाख का टर्नओवर है और 10 लाख का प्रॉफिट उसके अंदर हुआ, तो क्या टैक्स ऑडिट रिक्वायर होगी या नहीं होगी आप सभी की तरफ से?
चैट बॉक्स नेचर ऑफ बिजनेस इज मिसिंग। नहीं, प्रोफेशनल है, हम सब सीएज हैं और हम ऑडिट होगी कि नहीं होगी, 40 लाख का टर्नओवर है, 10 लाख ऑडिट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हमने सबने एलएलपी फॉर्म कर ली और देन ऑडिट रिक्वायर्ड किशन जी, एवरीवन। एनी अदर आंसर? देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हम रूबरू भी होंगे व्हेन वी विल गो अहेड विद द टैक्स ऑडिट। नो अदर आंसर आई बिलीव। वेटिंग फॉर फ्यू सेकेंड, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं रहेगा हमारे पास और वी नीड टू कवर दैट पार्ट एज वेल। भाई जी नमस्कार। मैं इस पर्टिकुलर केस में किशन जी, थैंक यू फॉर योर इनपुट, ऑडिट नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। सर क्यों? रीजन बीइंग 44 ADA LLP पे एप्लीकेबल नहीं होता। फर्म पे होगा अलग बात है, बट स्टिल। तो मेरे ख्याल से हमने सम अप किया और अब आगे बढ़ते हैं। अभी इंटरेस्टिंग पार्ट तो आने वाले हैं। नाउ ई पार्ट 44 AD4 जो ये कहता है अगर आप एक पर्टिकुलर 44 AD ऑप्ट करते हैं तो आप आने वाले 5 साल तक बाहर नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अगर हो जाए तो फिर 44 AD5 क्या बोलता है? इन केस ऑफ अगर आप किसी साल में आपने 44 AD ऑप्ट किया और उसके आने वाले 5 साल में आप बाहर हुए, आपको टैक्स ऑडिट की रिक्वायर्ड रहेगी, प्रोवाइडेड आपकी जो इनकम है वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टैक्स से ज्यादा हो, तो ऑडिट करवानी रहेगी साहब। बिल्कुल ठीक बात है। अब मेरा क्वेश्चन ये आता है, 5 क्लास मैंने रीड कर लिए। अगेन वन क्वेश्चन, वैसे मैं कई प्लेटफॉर्म्स पे ये क्वेश्चन ले चुका हूं, तो शायद आंसर करेक्ट आने चाहिए। काफी मैंने इस पे डिस्कशन किया। मोस्टली इनिशियल डेज पे सब आंसर नॉर्मली हम गलत ही कर रहे हैं, बट स्टिल अब सही क्या कर रहे हैं वो हम देखने वाली बात है। टर्नओवर इज 80 lakhs and the profit is 3,20,000. 3,20,000. Whether audit required? Nature of business is trading. Writing में मत जाना, ignore that. Nature of business is trading. My question is whether audit required. अच्छा, एक क्वेश्चन भी शायद मैं 2 क्वेश्चन मिस कर गया, मैं आता हूँ उसके बाद में। 2 क्वेश्चन है, शायद किशन जी का भी है और सुमित जी भी ऊपर पूछ के गए। मैं ये क्वेश्चन कवर करता हूँ कि क्या इस केस में ऑडिट की रिक्वायरमेंट रहेगी। टर्नओवर 80 lakhs, प्रॉफिट जो है दैट इज 3,20,000, ट्रेडिंग बिजनेस है, इंडिविजुअल बंदा है, वेदर ऑडिट रिक्वायर्ड? नो। जितेंद्र जी नमस्कार। बिल्कुल नहीं रहेगी ये, अगर ऑडिट रिक्वायर्ड रहेगी। एनी अदर आंसर? इन द पर्टिकुलर केस कुछ सेकेंड ही वेट करूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं रहेगा, फ्यू सेकेंड्स। एनी अदर आंसर? जस्ट हैविंग sip of water, wait for a while. Meanwhile, let's see. Now, audit is not required at all. ये कंफ्यूजन वाला केस है, कई बार मैंने सेशन में लिए, मोस्टली अब सब। थैंक्स अलॉट जितेंद्र जी। नो, क्योंकि अब वो क्लोज जो डी क्लोज यहाँ पे होता था 44 AD वाला, वो क्लोज यहाँ पे नहीं है। तो माइंड इट, 1 करोड़ के नीचे जो भी है टर्नओवर, उसको कोई भी ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है।
अच्छा, मैं एक क्वेश्चन अब मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट मैं आगे पहुंचता हूँ। अब आगे पहुंचता हूँ, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ही पहुंचता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वेट फॉर अ वाइल, मैं क्लियर करता हूँ। अब फास्ट कवर करता हूँ टर्नओवर के अंदर, क्योंकि इस पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला। टर्नओवर के अंदर कुछ डिडक्ट नहीं करना चाहिए, जैसे कि कैश डिस्काउंट है। कुछ टर्नओवर पे जैसे डिस्काउंट होते हैं, टर्नओवर अचीव अगर आपने कर लिया तो उस टर्नओवर पे भी जो डिस्काउंट बाद में मिलता है हमें, वो भी नहीं लेस होता। और स्क्रैप सेल हमेशा टर्नओवर का पार्ट रहेगी। अगर नॉर्मल बिजनेस की कंटिन्यूटी के अंदर काम हो रहा है, डिडक्ट होनी चाहिए, जैसे कि ट्रेड डिस्काउंट है टू बी डिडक्टेड। टर्नओवर डिस्काउंट है वो डिडक्ट होनी चाहिए। सॉरी, वो टर्नओवर डिस्काउंट मैंने, इफ द सेल्स रिटर्न है, ये सब होनी चाहिए। फिक्स असेट की सेल है अगर इंक्लूडेड है तो वो लेस होनी चाहिए। नाउ कंसाइनमेंट सेल पे जब आते हैं कि भैया टर्नओवर के अंदर क्या है, मैं कहता हूँ कंसाइनमेंट सेल पे जो हमारा एजेंट होता है, अगर रिस्क और रिवार्ड उसको सब ट्रांसफर हो गए तो फिर वो टर्नओवर का पार्ट कंसाइनमेंट एजेंट के लिए रहेगा ही रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। अच्छा, मैं दो क्वेश्चन मेरे चैट बॉक्स में रह गए, मैं उन पे आता हूँ एक बार फर्स्ट ऑफ ऑल, नहीं तो वो फिर वापस छूट जाएंगे। सुमित जी का शायद ऊपर कुछ क्वेश्चन था। नमस्कार सुमित जी। सर, टर्नओवर इज इन फ्यूचर एंड ऑप्शन 2.34 करोड़, कैन दे ऑप्ट फॉर नो अकाउंट केस? यस, देखो 44AA की जब हम बात करते हैं, ओनली वन केस वेयर इट इज डिफाइंड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ अ स्पेसिफाइड प्रोफेशन। इन ऑल अदर केसेस जो सेलेक्ट आएगा अकाउंट केस, नो जाएगा। राइट, मेरे ख्याल से ये आंसर आपको क्लियर होगा। नाउ अब शायद किशन जी ने, बट व्हाट अबाउट इफ एसएससी चेंज बिजनेस टू सैलरी? ये शायद मैं अब मिस कर गया, कौन से कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे थे। शायद मैं मिस कर गया। किशन जी अगर थोड़ा सा हम, हाँ ऑटोमेटिक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इन केस सैलरी तो फिर वो रहेगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल वो बाहर हो जाएगा, नो डिटरमाइंड। अब हम वापस आते हैं, क्योंकि शेयरों का बड़ा, मैं बहुत इजी वे में शेयरों के बारे में कई कंफ्यूजन रहते हैं डेरिवेटिव्स पर। मैं कोशिश करके एकदम शॉर्ट एंड स्वीट शेयर के अंदर मैं आपको बता दूं। शेयरों के अंदर जो ट्रेडिंग है उसके अंदर एक स्पेकुलेटिव बिजनेस बात की गई है, वो है स्पेकुलेटिव बिजनेस जो बिना डिलीवरी बेस होते हैं। और स्पेकुलेटिव बिजनेस के अंदर डेरिवेटिव्स को बाहर रखा गया है। मीनिंग देयर बाइज डेरिवेटिव्स के अंदर जो हमारे जो ट्रांजैक्शन आते हैं, जैसे फ्यूचर ऑप्शन, जैसे कि सुमित जी भी बात कर रहे थे, ये सब तो ये सब बाहर रखे गए हैं। तो अब वो स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं रहेगा, नॉर्मल बिजनेस के अंदर आ गया, आप समझिएगा। तो बात आती है कि अब स्पेकुलेटिव बिजनेस हमेशा स्पेकुलेटिव है, उसको अकॉर्डिंगली हमें अलग से ट्रीट करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड वगैरह उसका उसी हिसाब से रहेगा। बात आती है कि जब हम ये जो शेयर्स F&O वगैरह की बात करें, तो इनके अंदर हमारा जो प्लस और माइनस इंट्राडे जो होता है, वो स्पेकुलेटिव बिजनेस के अंदर हम कह सकते हैं। अब बात आती है इनके अंदर टर्नओवर कैसे काउंट करना है, प्लस माइनस दोनों जो होते हैं उनको हम जो भी फेवरेबल और अनफेवरेबल, मतलब अगर लॉस हुआ किसी स्क्रिप्ट पे और प्रॉफिट हुआ, उन दोनों को ऐड करना है। ऐड करके जो भी आता है वो टर्नओवर का पार्ट होगा। और हम जो ऑप्शन में प्रीमियम रिसीव करते हैं, बात करते हैं, तो वो भी ऐड कर दिया जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारे ट्रांजैक्शन है जो नॉर्मली हम डेरिवेटिव फ्यूचर ऑप्शन के अंदर बात की जाती है। फ्यूचर ऑप्शन ऑलवेज बी ट्रीटेड एज डेरिवेटिव। इंट्राडे स्पेकुलेटिव बिजनेस के अंदर आएगा और उस तरीके से ट्रीट होगा। और डिलीवरी बेस्ड जो ट्रांजैक्शन है, वो डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन नॉर्मल बिजनेस की तरह ट्रीट किए जाएंगे। उसी की तरह से परचेज, सेल, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वो सब आने वाला। ICDS जो स्टॉक्स और सिक्योरिटीज पे लगता है, आप समझिएगा, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। नाउ मैं, क्योंकि इस पे ज्यादा हम टाइम नहीं लेते, इन बिटवीन आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप देखिएगा। आप प्लीज पुट योर क्वेश्चन ऑन चैट बॉक्स। टैक्स ऑडिटर शुड कंसिडर, वुड बी एडवाइजेबल टैक्स ऑडिटर कंसिडर द फॉलोइंग। कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, सपोज करो कोई ये बोलता है कि उस पर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, तो अगर वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वो आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में शो कर सकते हैं। बात आती है सर वो वहाँ कॉलम तो नहीं आता, कहाँ करेंगे? तो देखो बिल्कुल आता है ऑब्जर्वेशन कमेंट का 3CD 3CA के 3CB 3CA के अंदर। मैं बात करूंगा उसकी अभी कुछ ही नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, वहां पे हम अपना कमेंट डाल सकते हैं। अब आप समझिएगा, पर्टिकुलर क्लोज अगर अप्लीकेबल नहीं होता तो हमें लिखना चाहिए कि नॉट अप्लीकेबल, राइट? तो वो अब सेलेक्ट, अब तो क्या मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो वो फिल करवाता ही है, तो वो हमें फिल करना ही रहेगा। अगर आपको सपोज करो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर टेक्स्ट क्लोज के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती, तो हमें पूरी रिपोर्ट होल्ड करने की जरूरत नहीं है। हम पता लगा हमने रिपोर्ट ही फनी, अगर जो क्लोज रिलेटेड तो नहीं है, आप चाहो तो अगर आपको लगे क्वालिफाइड करना है तो क्वालिफाइड कर सकते हो, समझिएगा, राइट? तो ये सब चीजें। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाला हूँ और क्लोज की भी बात करूंगा।
सर ये क्या है, तो बताइए। यहाँ पे मेरे क्वेश्चन रहेंगे, आंसर आप करेंगे। देखो 3CA जहाँ ऑडिट होती है वहां 3CA होता है, बराबर है, ये हम सब जानते हैं अंडर एनी अदर लॉ। और 3CB अदर केस में आ गया साहब। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या हर कंपनी को जब हम ऑडिट करेंगे तो 3CA जाने वाला है हर कंपनी के केस में? आंसर यस और नो। मतलब जब हम कंपनी की ऑडिट करने वाले हैं, टैक्स ऑडिट, तो उसमें हम 3CA यूज करेंगे कि 3CB यूज करेंगे? कृष्ण जी इज सेइंग नो, 3CA। हाँ 3CA यूज करेंगे, आपने ये कहा हमेशा, वही मैं कह रहा हूँ 3CA यूज करेंगे हमेशा इन टैक्स ऑडिट। किशन जी ये कह रहे हैं, और कोई ओपिनियन भी है? एनी अदर ओपिनियन? क्या कंपनी के केस में 3CA यूज किया जाता है? यू कैन यूज द चैट बॉक्स। देखो हर केस में ऐसा नहीं है। अगर अच्छा एक और आंसर, इफ ऑडिटर डिफर देन 3CB ऑडिटर डिफर की बात ही नहीं कर रहे। ऑडिटर की ओपिनियन डिफर आया तो 3CB अपन यूज कर दें, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप एक केस लीजिए, अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जनवरी के बाद, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम हमारा अभी का बात करते हैं, 21-22 की बात करते हैं। कोई कंपनी 1 जनवरी 2021 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई, हमें पता है एमसीए के अंदर 15 महीने के एक साथ बुक्स ऑडिट करके सबमिट किए जा सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर 21-22 जो एंड हुआ, आप समझिएगा 21-22 जो एंड हुआ है हमारा पीरियड, उसके अंदर हमें कंपनीज ऑडिट की जरूरत ही नहीं रही, तो हम उस केस के अंदर 3CB फाइल करेंगे उस कंपनी का। चलो एक और क्वेश्चन, इंडिविजुअल है जीएसटी ऑडिट कर दी साहब। पूर्वी जी नमस्कार। अगर इंडिविजुअल है, दिनेश जी नमस्कार, इंडिविजुअल है और उसकी जीएसटी ऑडिट कर दी हमने, विच फॉर्म वी नीड टू फाइल, 3CA और 3CB? देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं ये सब। कौन सा फॉर्म जाने वाला है? जीएसटी ऑडिट कर दी हमने, इमीडिएट मैसेज आया कुछ, वो तो मैं मैंने कहा बड़ा इमीडिएट आंसर आया, तो पता लगा सुनील जी ने अपना मोबाइल नंबर दिया है। सुनील जी नमस्कार। जीएसटी ऑडिट, किशन जी जीएसटी ऑडिट वी हैव डन। अब मेरा क्वेश्चन ये उस इंडिविजुअल के लिए, 3CB की 3CA? अब जीएसटी ऑडिट, अच्छा अब मैं समझ गया, जीएसटी ऑडिट मान के चलिए 1920 की है, 2021 की तो हम साइन कर ही नहीं रहे, 2021 की तो हम साइन नहीं कर रहे, समझ रहे हैं? 1920 की, अब इसको क्वेश्चन थोड़ा सा मैं मॉडिफाइड करता हूं, 1920 की जीएसटी ऑडिट हो गई और हमें क्या करना है, 3CB की 3CA। थ्री CB इन केस ऑफ इंडिविजुअल। सर ये तो बाय डिफॉल्ट इंडिविजुअल के केस में तो 3CB ही जाना है। किशन जी थैंक्स अ लॉट फॉर योर प्रॉम्प्ट आंसरिंग ऑलवेज। सर इंडिविजुअल के केस में तो 3CB जाता है, बट ऑडिट तो हुई है जीएसटी ऑडिट, और हम कह रहे हैं ऑडिट के केस में 3CA जाता है, पर हमने आज तक इंडिविजुअल के केस में 3CA भरा ही नहीं, तो सर बाय डिफॉल्ट एक्सपीरियंस ऑलवेज बी प्रेफर्ड। तो मैं आपको बताता हूँ 3CA, जितेंद्र जी कह रहे हैं जी 3CA जाएगा। थैंक यू। एनी स्पेसिफिक रीजन जितेंद्र जी की क्यों 3CA जाएगा? मैं आता हूँ, खैर ज्यादा लंबा चला जाएगा, मेरे ख्याल से आंसर मैं बताता हूँ। 3CA इसलिए जाएगा, बराबर है, ऑडिट अंडर अदर लॉ। थैंक्स लॉ जितेंद्र जी। एक्चुअली मैं बताऊं, जो प्रोविजन है उसमें ये साफ कहा गया है, ऑडिट फॉर ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अकाउंट्स। जीएसटी ऑडिट विल नेवर बी फॉर द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ accounts. Getting my point? It's again a reconciliation statement. In that case, only 3CB will be there in case of GST audit for an individual. Getting my point? आप कभी उसकी लैंग्वेज भी देखना 3CA 3CB की,
वहां पे भी डिफर है। 3CA के अंदर जब आता है तो वहां पे आता है कि हमने ऑडिट किया, सामने वाले ने ऑडिट की, उसमें लिखा होता है वी और मेसर्स ऐसा करके लिखा हुआ आता है, राइट। 3CB के अंदर ऐसा नहीं आता, उसकी लैंग्वेज दोनों में डिफर है। अब मैं उस पर नहीं जा रहा क्योंकि हमें काफी क्लोज भी कवर करते हैं, बहुत सारी चीजें भी कवर करनी है, तो आप ध्यान से देखिएगा दोनों में डिफरेंस है। ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अकाउंट्स की बात करता है और जीएसटी ऑडिट उसकी बात नहीं करती, इसलिए इन दैट जीएसटी के केस में भी 3CB ही जाने वाला है, राइट। तो ये एक और डिस्कशन था। नाउ थैंक्स अ लॉट जितेंद्र जी एंड किशन जी। अब आती है साहब बहुत, ये आप देखना कभी इंस्टीट्यूट का ऑडिट पे कमेंट जब आए हैं टैक्स ऑडिट पे, ये उन्होंने बड़ा एम्फेसाइज किया है इस चीज को। मैं आप सबको भी बोलता हूँ, प्लीज बी कॉशियस व्हाइल अपलोडिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। मैनेजमेंट एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्लोज वहां पे आना चाहिए। देखो 3CA के केस में तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन पर्टिकुलर्स ऑफ स्टेटमेंट 3CD, आप समझ गए, उन पे आएगा जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स, जिसे हम 3CD क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स ही तो है एक तरीके से रिपोर्ट का, आप देखिए कि ऊपर लिखा हुआ भी रहता है। 3CA के केस में जहां ऑडिट हुई रहती है, आप समझिएगा, जहां ऑडिट हुई रहती है, आप ध्यान से समझिएगा जो मैं बोल रहा हूं। इन केस ऑफ 3CA जहां ऑलरेडी ऑडिट हो चुकी है, उसके केस में हमारी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्लोज जाना चाहिए ऑन पर्टिकुलर्स ऑफ द स्टेटमेंट 3CD। अब जहां ऑडिट नहीं हुई 3CB के केस में, वहां हमारे दोनों जाएंगे, एक तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अकाउंट्स, एंड सेकंड करेक्टनेस, ट्रू फेयर व्यू ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स। क्योंकि यहां ऑडिट नहीं हुई है तो हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट नहीं बनाई है भैया, हम हमारी ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट शुड बी क्लियरली रिटन ओवर देयर। क्योंकि वहां ट्रू एंड फेयर व्यू तो रहा ही नहीं ना, क्योंकि ऑडिट हुई नहीं है इंडिविजुअल के केस में, हम ही कर रहे हैं। तो यहां हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कर्टेल कर रहे हैं, मैनेजमेंट पे बोल रहे हैं कि भैया मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है सारी चीजों के, और हम वो क्लोज लिख नहीं रहे हैं। और ये प्रॉब्लम भी है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में अलग से दिया हुआ नहीं है, पर हमें लिखना, अब लिखना कहाँ रहेगा, मैं आपको यहाँ पे मैंने लिखा भी है बोल्ड में, देखो अंडर क्लोज 3 ऑफ 3CA, क्योंकि इसमें क्लोज कम होते हैं, क्योंकि ट्रू एंड फेयर व्यू, और इसके अंदर क्लोज 5 है, वहां पे आप दे सकते हो ये सब लिख के। अगर किसी को कंटेंट चाहिए, मैं मेरा मेल आईडी भी शेयर कर दूंगा, मोबाइल नंबर, तो मैं आपको रिवर्ट करता हूँ कि हमें नॉर्मली स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है, जो ड्राफ्ट करना है, वो हमें लिखना रहेगा। हाँ, कंटेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, कंटेंट्स की बात कर रहा हूँ किशन जी। मैं इवन मेल भी कर दूंगा, आप मेरे को मोबाइल पे टेक्स्ट कर दीजिएगा, या मैं मेल आईडी भी शेयर करूंगा एट द एंड, तो आप उस पर भी मैं सीधा कंटेंट्स, वही रिस्पॉन्सिबल जो हम नॉर्मली कंपनीज ऑडिट के केस में देते हैं ऐसे 700 के अकॉर्डिंग, वो हमारी ड्राफ्टिंग रहेगी, राइट। तो मेरे ख्याल से वो हम अभी डिस्कस, नॉर्मल जो हम देते हैं डिस्क्लोजर कि भैया मैनेजमेंट कहाँ रिस्पॉन्सिबल है और ऑडिटर कहाँ रिस्पॉन्सिबल है, वो वाला केस रहेगा, तो वो मैं शेयर करूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो ये चीजें देखो हमें ध्यान रखने वाली है, हम इन चीजों को देखते ही नहीं है, हम ज्यादा ऑब्जर्व भी नहीं करते कि भैया जो हमारा 3CA 3CB के अंदर आप देखिए 3 क्लोज 5 क्लोज हमें ध्यान है, पर वो क्लोज की इंपॉर्टेंस हम ये नहीं देख पाते कि 3CA के अंदर ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में ज्यादा बात, कोई तकलीफ नहीं है, पर 3CB के केस में यहां तकलीफ है। गेटिंग माय पॉइंट, राइट। जब मैंने टैक्स ऑडिट पे यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो डाला, वहां भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, तो ये चीजें क्या है हमें ध्यान रखनी रहेगी बीइंग अ प्रोफेशनल, कि हम अपनी लायबिलिटी को जितना कम कर सके उतनी इंपॉर्टेंट रहे। क्वालिफिकेशन भी हम डाल सकते हैं, वहीं पे डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया पैरा नंबर जो क्लोज नंबर 3 और 5 है, वहां पे हम क्वालिफिकेशन भी डाल सकते हैं। टैक्स ऑडिट एंड यूरिन आपको पता है, कोड ऑफ एथिक्स हम जानते हैं, असाइनमेंट जब एक्सेप्ट करते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन डू, टैक्स ऑडिट आई एम टॉकिंग अबाउट, इज इट 40 60? थैंक्स अ लॉट किशन जी, अगेन आई प्रॉम्प्ट आंसर, बिल्कुल 60। तो जो 44 एडीए की जो ऑडिट
मैंने की 50% की क्लोज वाली, तो क्या इसके अंदर वो इंक्लूड है? या 44 AD A4 की ऑडिट जो मैंने की कि भैया 5 साल से बाहर, क्या इन 60s के अंदर वो काउंट किया जाएगा? नो, बिल्कुल सही किशन जी। ओनली क्लोज ए और बी विल बी काउंटेड एज फार एज 44 AB A and B, राइट? वो काउंट किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ 60। थैंक यू अनिल जी। नाउ अब मैं आगे बढ़ता हूं। मेरे ख्याल से अब क्लोज लेने का टाइम आ गया है। क्लोज लेने के लिए मेरे पास मैंने एक ऑडिट रिपोर्ट मैंने राउंड फिगर मार रखा है कि हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए। सब क्लोज हम नहीं ले पाएंगे, बट स्टिल मैं स्टॉप करता हूं ताकि विजिबिलिटी सामने रहे। हम 1 by 1 क्लोज डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हम जस्ट सिप ऑफ वाटर, वेट फॉर अ व्हाइल। थैंक यू वंस अगेन फॉर कोऑपरेटिंग। नाउ सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, जो हमारा क्लोज है वो क्लोज है 1 नंबर क्लोज, नेम ऑफ द एसएससी। देखो, यहां पे भी एक डिस्क्लोजर बनता है इन केस। देखो, अभी क्या हो गए, 2 पार्ट हो गए। किसके 2 पार्ट हो गए? ऑडिट रिपोर्ट के ए और बी। ए के अंदर 1 to 8A तक है, नॉर्मली वो प्रोफाइल से रिलेटेड हो गया, और फिर आगे जो 9 से 44 तक है वो मेन पार्ट हो गया, आप ये मान के चलिए। अभी मैं फर्स्ट नंबर क्लोज की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट नंबर क्लोज के अंदर आप मान के चलिए जो नेम है, सर इसमें भी क्या ध्यान रखना है? देखो, इसमें ये ध्यान रखना है, अगर नेम चेंज होता है, कंपनी का भी नेम चेंज होता है, इंडिविजुअल का भी होता है सरनेम। खास तौर पे लेडीज के केस में भैया शादी होके आती है तो वो कई कहानी रहती है, उस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है ड्यूरिंग द ईयर, अगर लास्ट ईयर से और इस लास्ट ईयर में कोई फर्क है नेम पे, तो वो चीज हमें डिस्क्लोज कर देनी चाहिए बीइंग ऑडिटर कि भाई हमारा ये ऑब्जर्वेशन भी था। दिस इज कॉल्ड अ क्वालिटी। नाउ अब आती है बात, कंपनी में भी ऐसे ही होता है, अर्लियर नोन एज विद दिस नेम, अभी ये नाम है, ये नंबर चेंज होते नहीं, आपको पता है। नाउ दूसरा है एड्रेस। एड्रेस के अंदर, अब एड्रेस के अंदर क्या चेक करना है सर? वैसे कोई कुछ चेक करने वाली बात नहीं बनती, बट अगर एड्रेस चेंज होता है लास्ट ईयर और करंट ईयर, ये फैक्ट 3CD के अंदर डिस्क्लोज कर देना चाहिए। वही मैंने बताया क्लोज 3 और 5 के अंदर, वहां पे आप ऑब्जर्वेशन अपनी डाल सकते हो। नेक्स्ट आता है, बाकी में बीच बीच में जो आ रहे हैं वो मैं छोटे वो बीच बीच में छोड़ भी दूंगा। 4 नंबर क्लोज, वेदर द एसएससी इज लायबल टू पे इनडायरेक्ट टैक्स लाइक एक्साइज ड्यूटी एटसेट्रा एक्स्ट्रा, तो डिटेल फर्निश करनी है सब आप। अब तो बड़ा आसान काम हो गया, पेन नंबर डालिए, जीएसटी के अंदर सारे रजिस्ट्रेशन आपके सामने होंगे। कुछ एक्टिव इनएक्टिव है तो वो अलग बात हो गई, बट आप वो सब चीजें रिकंसाइल कर सकते हैं। अब तो 26 एज के अंदर भी सारे जीएसटी नंबर आने लगते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्लोज नंबर 8 पे। आप समझिए क्लोज नंबर 8 क्या बोलता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे मेरा क्वेश्चन रहेगा, इंडिकेट द रिलेवेंट क्लोज ऑफ सेक्शन 44AB अंडर विच द ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड। आप देखिएगा 7 तरीके से मेरे ख्याल से लिस्ट आती है। और ABA 1 करोड़ से ज्यादा वाली लिमिट, 44AB जो 50 लाख से ज्यादा है, 44ABC जो हमने देखा डिम प्रॉफिट, 44AE और वो वाला क्लोज था BBB वाला, और 44ABD वो है हमारा ADA की लोअर इनकम है, और E क्लोज हो गया हमारा 44AD4 वाला, उससे बाहर होते हैं। इसके अलावा भी कोई क्लोज है क्या? यस, क्लोज है साहब। कौन सा क्लोज है? वहां पे क्लोज है एक प्रोविजो 44ABA का, अगर वो एक्सीड हो जाते हैं 5% से ज्यादा। और एक है हमारा एक और क्लोज है, आप देख सकते हैं, वो क्लोज है 44AD का, नहीं 44AB का थर्ड प्रोविजो, वो बोलता है ऑडिट अंडर एनी लॉ। ये बाकी के 5 क्लोज तो ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आप सबसे should give old SRV tax or wait?
देखो वेट के असेसमेंट अभी भी चालू है, दैट इम्प्लीकेशन इज ऑल्सो देयर, आप बिल्कुल डाल सकते हैं अभी तक, तो जब तक वेट के नंबर डालने भी चाहिए, अगर आप क्योंकि वहाँ पे भी डिमांड वगैरह सब क्रिएट हो रही है, अभी भी असेसमेंट चालू है, तो वेट के नंबर भी देने चाहिए। किशन जी नाउ, हाँ हम बात कर रहे थे क्लोज की, 5 क्लोज ठीक है। अच्छा अब मैं आपके पास आ रहा हूं, एक एसएससी है, एसएससी की 5 करोड़ की टर्नओवर है और कैश कंपोनेंट 5% से ज्यादा है, तो मेरे को कौन सा क्लोज सेलेक्ट करना है? 44 ए बी ए सेलेक्ट करना है, राइट? इज इट? आप समझिएगा, मैंने 7 क्लोज आपके सामने रखे, देखो ये चेक, और मोस्टली हम सब उसी में फॉल होने वाले हैं। 5% से ऊपर ही जा रहा है कैश कंपोनेंट, तो हमें कौन सा क्लोज सेलेक्ट करना? और मान के चलिए इंस्टीट्यूट की तरफ से भी कई ऐसे रिकमेंडेशन आए कि साहब आप ये क्लोज तो ढंग से भरा करें। जो अभी हम बात कर रहे थे कि भैया 44 एडी के अंदर अगर 6% 8% से प्रॉफिट कम रहता है 1 करोड़ के नीचे, तो वो क्लोज तो है ही नहीं साहब। हम कौन सा क्लोज सेलेक्ट कर रहे थे? ऑडिट भी कर रहे हैं। आप देखिए जयपुर से ही नंबर ऑफ कॉल्स आई है रिसीव्ड कि सर हमने तो ऑडिट कर दी है। ऑडिट करने में बुराई नहीं है, पर क्लोज कौन सा सेलेक्ट करोगे? मेरा क्वेश्चन अगेन आप सबके सामने, 5% से ज्यादा है तो क्लोज कौन सा सेलेक्ट करना है? 44 ABA और प्रोविजो 44 ABA का जो लिमिट है, और वी शुड बी वेरी कोशियस। मैं आंसर में दे रहा हूं, हमें क्लोज सेलेक्ट करना है, राइट? कौन सा? प्रोविजो वाला। नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने ये है, अच्छा क्या कोई बता सकता है कि कंपनी के केस में हर एक कंपनी की ऑडिट होनी है? मेरे पास एक क्वेश्चन कई बार आया कि सर ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ, एक थर्ड प्रोविजो 44 AB भी आता है सर, उसमें लिखा है अगर ऑडिट अंडर लॉ में हुई है तो ऑडिट करनी है। अगर कंपनी का टर्नओवर 5 लाख है तो ऑडिट करनी है क्या? नो। किशन जी शायद अभी आंसर दिया, मेरे ख्याल से वो, मेरे को टाइमिंग नहीं आ रहा, वो पहले वाली टाइमिंग के साथ में, क्योंकि वहां लिखा है ऑडिट अंडर एनी लॉ, कीर्तन जी भी कह रहे हैं नो, तो फिर ये क्लोज क्यों है? अच्छा एक कंपनी की टैक्स ऑडिट होनी है बिकॉज ऑफ अबव क्लोज, तो ये कब आएगा? नहीं ये यूज कब होगा, मतलब कहने का मतलब फिर ये यूज कब करना है? ऑडिट अंडर एनी लॉ लिखा हुआ है तो फिर यूज कब करना है? देखो मैं आपको बता दूं, इस पे ज्यादा लंबा हम नहीं जा रहे, ये क्लोज हमें पहले वो तो चेक करना ही रहेगा जो एसेंशियल क्राइटेरिया है हमारे 5 A से E तक। अब अगर कंपनी उसमें फॉल होती है तो आप कह सकते हो ऑडिट अंडर एनी लॉ। गेटिंग माय पॉइंट? अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्लोज की तरफ। ये शायद सुमित जी का क्वेश्चन भी था, ऑडिट रिपोर्ट का 11 नंबर पॉइंट है, वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 44 AA, इफ यस लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स सो स्पेसिफाइड। मैं आपको बता दूं, थैंक यू कीर्तन जी, केवल आप सबको पता है प्रोफेशन इज स्पेसिफाइड फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदरवाइज नो। मेरे ख्याल से क्लियर है, मैंने आंसर पहले भी दिया था और ये क्लोज आया भी, राइट। नेक्स्ट आता है 11B, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड एंड द एड्रेस एट विच द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर केप्ट, राइट? क्लोज नंबर 11B, आप समझिएगा। अब बात ये आती है 11B के अंदर जो क्लोज दिया गया है उसके अंदर साफ लिखा गया है कि भैया जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनमें हम क्या कर सकते हैं कि भैया लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे दीजिए। अगर कोई भी कंप्यूटर सिस्टम में बुक्स ऑफ अकाउंट्स है तो हमें वो वैसे लिख भी देना चाहिए कि भाई मेंटेन हम हमारी तरफ से बीइंग ऑडिटर कि भैया EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग या हम कंप्यूटर एनवायरनमेंट में ऑडिट कर रहे हैं तो मोस्टली बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन अंडर कंप्यूटर दैट इज लोकेटेड एट दिस पर्टिकुलर प्लेस।
समझ रहे हैं, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये हम थोड़ा सा ध्यान रखें, जो 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 क्लोज में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी तो लिस्ट ऑफ अकाउंट्स वगैरह आप सब दे सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड इन द प्रीवियस ईयर। आपको, क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर ज्यादा नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम, मेरे को आधे घंटे के अंदर, फिर लास्ट के 15 मिनट्स हम डिस्कशन के लिए 10 to 15 मिनट्स डिस्कशन के लिए रखेंगे। देखो यहाँ क्या है, पूछा गया है, सॉरी, मेथड ऑफ अकाउंट एम्प्लॉयड इन द प्रीवियस ईयर 13, आप समझिएगा जो हमारा क्लोज है वो क्या बोला गया है कि भैया अब मेथड ऑफ अकाउंट, अब मेथड ऑफ अकाउंट में आपको मैं एक चीज बता दूं, कंपनीज आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू फॉलो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कंपनीज इन केस ऑफ अदर एसएससी, वहां पे चाहे प्रोप्राइटरशिप हो चाहे पार्टनरशिप हो, वो क्या कर सकती है, वो उनके ऊपर है, वो कैश मेथड पे आए या मर्केंटाइल सिस्टम पे आए। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। तो मर्केंटाइल और अगर उसका किया है तो उसका इफेक्ट आने वाले क्लोज में हमें देना रहेगा। नेक्स्ट मैं आगे चलता हूं, 14B, इन केस ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मेथड ऑफ वैल्यूएशन प्रेस्क्राइब्ड। अब देखो ऊपर 14 में क्या है, 14A के अंदर एक पूछा गया है 14A, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ईयर। आपको मैं बता दूं 145A हम बाद में हो सकता है डिस्कस करें नहीं करें, पर मैं जब बात आई है वो कहता है कि इंक्लूसिव होना चाहिए। आपको पता है ये सब बात, मेरे ख्याल से सबको पता है कि जो सेस वगैरह आता है वो इंक्लूसिव मेथड फॉलो होना चाहिए। बट इन अ पर्टिकुलर, हम आप मान के चलिए मोस्ट ऑफ अस आर नॉट फॉलोइंग इंक्लूसिव मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर वैल्यूएशन पर्पस, हम सब एक्सक्लूसिव में ही जा रहे हैं। तो क्या आईसी गाइडेंस नोट भी इसमें कुछ कहता है? वो ये कहता है कि साहब हम फॉलो कोई भी कर रहे हो पर उस पर पीएनएल पे फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बात अभी इवन मैंने भी बीच में एक डिग्नेटरीज थे गवर्नमेंट से, तो उनसे भी मैंने ये बात डिस्कशन चालू था कि भैया इस क्लोज को आपको देखना चाहिए। नो डाउट 145A में बिल्कुल इंक्लूसिव मेथड है, अदर मेथड नहीं है, बट स्टिल हम बीइंग ऑडिटर हमें ये जरूर देना चाहिए कि इंक्लूसिव मेथड नहीं एक्सक्लूसिव मेथड फॉलो किया गया, बट स्टिल देयर आर नो डिफरेंस एज फार एज प्रॉफिट इज कंसर्न, कि भाई चाहे वेदर इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव मेथड हो, आप समझिएगा। गेटिंग माय पॉइंट। और गाइडेंस नोट स्पेसिफिकली इस बात पे एम्फेसाइज कर, वहां तो एग्जांपल भी बताया गया है। आई एम जस्ट टॉकिंग, किशन जी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट 145A, राइट, इंक्लूसिव। जो डिस्कशन मैंने कहा ये बाद में रह नहीं जाए, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये इंक्लूसिव प्रोपोर्शनेट इंक्लूसिव मेथड ही फॉलो की बताया गया 145A। और हमारा गाइडेंस नोट भी देखोगे वहां स्पेसिफिकली लिखा गया है कि आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है कि सर हम एग्जाम्पल तो वहां देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट स्टिल कि भैया ये देखिए पीएनएल पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, राइट। नेक्स्ट आता हूं 16 नंबर पॉइंट, आप देखिएगा 16 नंबर पॉइंट क्या बोलता है। 16 नंबर पॉइंट हमें ये बोलता है अमाउंट नोट क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट, राइट। अब यहाँ नोट क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट, यहाँ देखिएगा दो चीजें हैं। नोट क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट, दो चीजें आ गई। नंबर एक क्या बोला, देखो लैंग्वेज क्या बोलती है, अमाउंट नोट क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट। क्रेडिट एक चीज तो क्या है, बुक्स के अंदर क्रेडिट हुआ, बुक्स के अंदर तो है, राइट, बट पीएनएल में नहीं है। हो सकता माइट पॉसिबल बैलेंस शीट आइटम हो, एक भैया बुक्स के अंदर कहीं आ ही नहीं रहा। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखिएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिया ही नहीं गया। आप देखिए जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अर्लियर जो फोरफिट करने वाला, हाँ दैट्स फाइन इनफ, प्रोपोर्शनेट जो स्टॉक लाइंग फ्रॉम परचेज नोट अवेल्ड ऑल आईटीसी फ्रॉम, हाँ ठीक बात है, वो अलग चीज हो गई। कहीं जरूरी नहीं कि हम सब पे आईटीसी क्लेम करें। नाउ
ना हाँ हम बात कर रहे थे, सॉरी, आइटम, हाँ क्रेडिट की बात कर रहे थे कि हम क्रेडिट जो आइटम है, जैसे कि एग्जांपल, हाँ एग्जांपल ले रहा था, जैसे कि हम फोर फीचर ऑफ लाइक advance money in case of removable property. Even though as far as accounting is concerned, it's again a capital receipt. But अब as far as computation is concerned, अब वो इनकम का पार्ट हो गई है. इवन दो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, मैं ये नहीं कहता बिजनेस की रिसिप्ट है, कि एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि भाई बुक्स के अंदर तो आपने कैपिटल लिया, बट उसके अंदर P&L के अंदर नहीं लिया. भले ही आपने P&L में भी ले लियो और हमने रूट कर दियो कि अदर सोर्सेज में एडलेस करके वहां पे पहुंचा दिया. तो कहने का मतलब ये दो चीजें हैं कि नॉट क्रेडिटेड. नेक्स्ट आता है कैपिटल रिसिप्ट, जैसा कि मैंने एक एग्जांपल बताया. और अब आता है, अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है 17 नंबर, वेदर एनी लैंड और बिल्डिंग और बोथ इज ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर for a consideration less than value adopted or assessed or assessable by an authority of a state government referred to in section 43CA 50C, please furnish. फर्निश क्या करना है, वो तो डिटेल, प्रॉपर्टी की डिटेल है, पिन कोड है, कंसिडरेशन कितना रिसीव हुआ और वैल्यू अडॉप्टेड, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या थी साहब, राइट. बट एक कॉलम और ऐड कर दिया गया है, और वो कॉलम क्या है, वेदर प्रोविजन ऑफ सेकंड प्रोविजो to subsection 1 of section 43CA, right, और फोर्थ प्रोविजो ऑफ सेक्शन 56 to 10 क्लोज. मैं समझाता हूं कि वो अप्लीकेबल है कि नहीं है, मैं आपको समझाता हूं. कोविड का पीरियड, और हमारे पास क्या था, एक रियल एस्टेट वालों को एक सहूलियत दी गई. मैं बात कर रहा हूं फिर क्लोज नंबर 18 की. और ये देखो दो सेक्शन है, 43CA है और एक है 50C है. तो आप ध्यान से समझिएगा, इन दोनों में डिफरेंस है, वो तो आपको पता ही है, मैं उस पर नहीं जा रहा. बट स्टिल प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम हमारे 18 नंबर क्लोज को लेके ये हुई कि कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि सर जो हमारे लिए नवंबर से लेके नवंबर 20, स्पेसिफिक डेट है शायद 9 नवंबर, जो भी ऊपर नीचे हो सकता है, टू 30 जून 2021, उस पीरियड के अंदर रियल एस्टेट को बूम देने के लिए कहा गया, अगर फर्स्ट टाइम अगर सीधा बिल्डर से कोई परचेज करता है और 2 करोड़ तक उसका वैल्यू रेजिडेंशियल यूनिट है, तो उस केस के अंदर आपका जो कंसिडरेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का डिफरेंस है वो 20% तक काउंट किया जाएगा. भाई है क्या, एग्जांपल, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आ रहा है, कंसिडरेशन हमने दिया 100 रुपए, जबकि उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आ रहा है 115 रुपए. अकॉर्डिंग टू सेक्शन इवन 50C और 43CA वो बोलता है कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा आता है तो आपको ज्यादा ही सेल्स कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना रहेगा. बट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ 43CA, अब वो बोलता है वो जो कंसिडरेशन से 20% का मार्जिन, यानी कि 120 रुपए तक, अगर आपने से ऊपर नीचे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 120 है पर आपने 100 रुपए में सेल कर दिया, तो भी आपका कंसिडरेशन सेल वैल्यू 100 रुपए ही माना जाएगा, हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे. और ये पर्टिकुलर प्रोविजो ऐड कर दिया गया कॉलम, और ये केवल और केवल 43CA के लिए एप्लीकेबल है. और करस्पॉन्डिंग जो इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा 56 to 10 के अंदर, क्योंकि वहां लोअर कंसिडरेशन भी आएगा साहब 20 रुपए से कम वाला, तो उस रिसिपिएंट के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं होगा. लोअर कंसिडरेशन इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. गेटिंग माय पॉइंट. तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो क्लोज है वो केवल 43CA के लिए है, अदर के लिए नहीं है, राइट. 50C के लिए 20% वाला क्लोज एप्लीकेबल नहीं है, मैं आपको फिर बता देता हूं. वो केवल हमारी जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जहां कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाता है 50C, उसके लिए एप्लीकेबल है. तो ये एक थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है. इवन दो जो ऊपर क्लोज लिखा गया है, जो लैंग्वेज लिखी गई है, उसमें 43C और 50C दोनों डाला गया है, ठीक है ना. वो थोड़ा सा इन्होंने मिस्टेक कर दिया, वो ऐसा नहीं, या तो क्लेरिफाई करना चाहिए था. नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन के बारे में. ठीक है, डेप्रिसिएशन इसमें मेरा कोई डिस्कशन वाली बात नहीं है, बट आपको मैं बता दूं, अगर इन केस 115 BAC आपने अडॉप्ट किया है तो
आप एडिशनल डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, उसका एडजस्टमेंट आपको करना रहेगा इन केस ऑफ न्यू प्रॉपर्टी, राइट? वो आपको करना भी रहेगा, बीइंग अ टैक्स ऑडिटर मेरे को उसको जस्टिफाइड भी करना है वहां पे, कहां पे, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कि वो एडजस्टमेंट हुआ है। नाउ अब आते हैं 20A। 20A क्या बोलता है साहब, आप समझिएगा 20A को। 20A बोलता है, बात करता है कमीशन क्लोज की। एनी सम पेड टू एन एम्प्लॉय एज बोनस और कमीशन फॉर सर्विस रेंडर्ड where such sum was otherwise payable to him as profit or dividend, right? मतलब ये सम एज ए प्रॉफिट और डिविडेंड देना था, परंतु क्या कर दिया गया, टैक्स के अकॉर्डिंग उसको बोनस और कमीशन के रूप में दे दिया गया। अगर ऐसा है तो रिपोर्ट करना है साहब। क्या कोई बता सकता है इस क्लोज का पर्पस क्या हुआ? एनी कि भैया कमीशन और प्रॉफिट इन केस ऑफ प्रॉफिट वगैरह ऐसा क्यों ऐसा है? और पता क्या लगेगा अगर जो दे रहा है कि नहीं दे रहा, कि भैया ये प्रॉफिट के बजाय जाता तो प्रॉफिट में से, वैसा देखा जाए तो कमीशन, बट जाना चाहिए था प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट पर दिया गया बोनस कमीशन, ताकि क्या हो, आपको डिडक्शन मिल जाए। बोनस और कमीशन की बात कर रहा हूं इन केस ऑफ, आप मान के चलो सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग जिनके पास हो गई और उनको बोनस कमीशन दे दिया गया, जबकि वो प्रॉफिट का पार्ट होता और डिडक्शन ले ली गई। आप समझ रहे हो, ये भी एक पॉइंट है जो हमें नोट करना चाहिए। और अगर ऐसा है तो हमें ये सब चीजें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में डालनी होगी। नाउ 21A क्लोज है, उसमें मैं ज्यादा नहीं जा रहा, वो तो खैर कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर्सनल एक्सपेंडिचर वगैरह की बात कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्लोज पे। एक मिनट, पॉइंट नंबर है ये 21 का बी, अमाउंट्स इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 40A। ये हम सबको पता है, ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे कि भाई जो भी इनएडमिसिबल अमाउंट है 40A के अंदर नॉन रेजिडेंट को जब पेमेंट किया जाता है 195 के अंदर, उसका TDS कटा है नहीं कटा, अगर नहीं कटा तो 100% डिसअलाउंस। फिर नीचे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्लोज की बात करते हैं IA कि भाई इन केस ऑफ रेजिडेंट को अगर पेमेंट है और TDS नहीं कटा तो उस पर 30% डिसअलाउंस है। अच्छा, can anyone, it's again a very dangerous provision as far as TDS is concerned. Can anyone let me know what are other implication, very serious implication apart from the disallowance if TDS has not been deducted? और कोई अगर कोई बता पाएगा कि भैया TDS डिडक्ट नहीं हो रहा, उसके अलावा, चलो डिसअलाउंस हो गया सर, कौन दिमाग लगाएगा, होने दो डिसअलाउंस, क्या और कोई इम्प्लीकेशन भी है कि डिसअलाउंस हो गया? एज पर द फॉर्मेट वी हैव टू गिव फुल अमाउंट बट 30%, सो हाउ टू मेंशन इन 3CD? मैं आता हूं, पहले हम अदर इम्प्लीकेशन है क्या है। आप डिसअलाउंस तो कर रहे हैं, वो फाइन इनफ है, तो उसका क्या होगा? एनी स्टिल वेटिंग, TDS डिफॉल्ट नहीं, TDS डिफॉल्ट तो है। एक चीज, आप पास तो बहुत पहुंच गए किशन जी, एक और चीज जो मेरे ख्याल से यहाँ पे आनी चाहिए। एनी अदर, वेटिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स, आगे बढ़ता हूं। एनी अदर, मैं वो क्लोज, हाँ, इसके अंदर एक और मेजर पॉइंट है जो मैं बात कर रहा था, दैट इज, किशन जी ने बिल्कुल वैसे सही कहा कि TDS में आता हूं असेसी इन डिफॉल्ट। आप फ्रेंड्स मान के चलिएगा, वेरी डेंजरस क्लोज। इट नॉट इवन रियली इम्पोज इंटरेस्ट पार्ट बट प्रोसिक्यूशन एज वेल for the person who is really responsible for deducting and depositing TDS। आपको पता है वो बीच में एक ड्राइव इनकम टैक्स वालों ने छेड़ी थी, उसके अंदर कई चपेटे में आ गए। फिर उसके कंपाउंडिंग के लिए हमें जाना पड़ेगा, कई लफड़े हैं, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा हायर साइड पे, तो 1000 लफड़े हैं उसके अंदर। इसलिए TDS वाकई में TDS है टू हैंडल।
राइट। तो ये एक बड़ी बात है। हमें पूरा जो अमाउंट टीडीएस का, देखो आप आगे जो कॉलम आएगा मैं उस पर डिस्कस की बात करूंगा, जो किशन जी का पॉइंट है कि कितना टीडीएस कटना चाहिए था नहीं कटना चाहिए था, वो तो जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है मैं आता हूँ उस पर भी क्लिक करता हूँ। मेरे ख्याल से उस क्लोज में हम पहुंचेंगे जब हमारे टीडीएस का वो दिया जाएगा। मैं वेट फॉर आएगा जो जब हम रिपोर्टिंग की बात करेंगे टीडीएस और कलेक्टेड 34 की, तब वहाँ ये पॉइंट डिस्कस करते हैं। पर फास्ट में कवर करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। बस 15। हाँ, आपने क्लास कौन सा बताया? 21 बी, अमाउंट इन 40 ए एज B1 राइट, इज इट B1 as non resident, date of payment, amount of payment, nature of payment, name of the payee, I believe A2 right। A2 इसमें क्यों नहीं आ रहा मेरे? A1 B A11 मेरे ख्याल से इसमें मेरे पास जो प्रिंट आउट है A12 TDS। could you please mention the heading? आना तो चाहिए प्रिंट आउट में, नहीं मेरे ख्याल से। आप किशन जी एक बार प्लीज लेट मी नो द एग्जैक्ट 48 वेट फॉर वाइल, फास्ट देखते हैं, नहीं अदरवाइज लास्ट में एक बार देखते हैं, इसको आइडेंटिफाइड करने में टाइम नहीं लगना चाहिए वैसे तो। 48 सब क्लोज 1 सब क्लोज 2 A1 2A। वेट फॉर अ वाइल, मैं कवर करता हूं। आप रेजिडेंट के केस में बात कर रहे हैं, रिपोर्टिंग फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन रेजिडेंट। हाँ मैं समझ गया, वो रेजिडेंट की बात कर रहे हैं, नॉन रेजिडेंट एडमेंट। इसमें क्यों नहीं रहा? मैं वही क्लोज फाइंड आउट कर रहा हूँ कि रेजिडेंट की बात कर रहे हैं। पेमेंट 1B, मेरे ख्याल से या तो पेज मिस है मेरे पास। वेट फॉर अ वाइल। वेट फॉर अ वाइल, मैं इसका फॉर्मेट चेक करता हूँ। मेरे ख्याल से शायद पेमेंट उसके क्लोज देख ही लेते हैं अपन। आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है 1B। हम आगे चलते हैं। अमाउंट इन्वेस्टमेंट 40 क्लोज 1 में 2 ही फाइंड 1A 1B। इसमें आ नहीं रहा, मिस क्यों हो रहा है पता नहीं। लेट इट बी, डिस्कस करते हैं एक बार। मैं सीधा सॉफ्टवेयर ही ओपन कर लूंगा, नो इशू, और हम स्क्रीन पे अपन शेयर करते हैं। आगे के पॉइंट अपन हाँ श्योर, मेरे को वो क्लोज आ जाएगा तो रिपोर्टिंग का अपन डिस्कस, नहीं तो मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर लूंगा, नो नो नोट अ बिग डील। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि क्लोज फास्ट कवर करते हैं। 40A3 के अंदर हम आइए, देखो दो सेक्शन है 40A3 और 3A। क्लोज नंबर डी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को आपसे डिस्कस करनी है, देखो 40A3 हम सभी जानते हैं वो डिसअलाउंस हो रहा है, दैट्स फाइन ना, पर एक 40A3A है, उसके अंदर क्या है? वो प्रोविजन क्या बोलता है? वो प्रोविजन ये बोलता है कि इन केस, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इन केस ऑफ मार्च, अगर आपने एक्सपेंडिचर बुक किया और एक्सपेंडिचर बुक करके उसका पेमेंट अगर आप करंट ईयर में कर रहे हैं, इफ यू हैव बुक्ड द एक्सपेंडिचर इन द ईयर 1920, let's say in the month of March, and you are making payment of that particular expenditure in the year 2020 2020 21-22 right? तो आपने क्या किया 2021 के अंदर एक्सपेंडिचर बुक किया और 21-22 के अंदर हम ये पेमेंट कर रहे हैं, तो वो पेमेंट भी जब कर रहे हैं वहां पे भी ये सेक्शन अप्लीकेबल होगा 40A3A राइट। तो वहां पे ये जो हमारा 6DD रूल है उसका वहां पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। और डिसअलाउंस उसके रेस्पेक्ट में है, पुराना एक्सपेंडिचर हमने बुक कर लिया परंतु 10,000 से ज्यादा पेमेंट था और 35,000 जो इन केस ऑफ हायरिंग लीज वाला जो क्लोज है उसके केस में, तो आपको ये डिसअलाउंस का ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है
अच्छा, एक मोस्ट इंपोर्टेंट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन एडमिसिबल, क्लोज नंबर 22, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन एडमिसिबल अंडर सेक्शन 23 ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप देखें क्लोज नंबर 15 से लेकर 22, इन क्लोज को फिर आता है 23, वो शुरू होता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर एक्ट, वो सीधा ही बोलता है। यहाँ तो क्लोज की बात नहीं हो रही, वो बोलता है किसी भी एक्ट में कुछ भी लिखा हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। अब ये बात बिल्कुल ठीक है। और आगे क्या बोलता है, वो बोलता है कि आपको इंटरेस्ट का प्रोविजन बनाना रहेगा। तो आपको ये प्रोविजन बनाना, मेरा क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है। नंबर 1, इंटरेस्ट, यहां पे इंफॉर्मेशन हम सभी को पता है, जो एमएसएमईडी एक्ट के अंदर प्रोवाइड किया जाता है वो इनएडमिसिबल होता है, वो साफ बोलता है एक्ट। फाइन इनफ। मेरा क्वेश्चन अब आगे एक और, ये इंटरेस्ट क्या हर एक एसएससी को प्रोवाइड करना रहेगा? कंपनीज एक्ट में तो हम जाते हैं, वहां तो एमएसएमई 1 फॉर्म फाइल करना रहता है, बट क्या इंडिविजुअल के केस में भी इस इंटरेस्ट का प्रोविजन बुक्स के अंदर होना चाहिए? आप टैक्स ऑडिट कर रहे हैं, क्या ऐसा प्रोविजन होना चाहिए? इंडिविजुअल के आप ऑडिट कर रहे हैं, क्या इंडिविजुअल को भी ये प्रोविजन डालना रहेगा? मेरा क्वेश्चन ये आप सबसे, यस और नो, whether you need to provide provision for interest in case of an individual to whom you are going to do auditing part, क्या वो आपको इंटरेस्ट का प्रोविजन देना रहेगा क्या? मेरे ख्याल से उस पार्ट में हम सभी मिस्टेक कर रहे हैं। एसएससी को, यस किशन जी कह रहे हैं एज ऑलवेज, बिकॉज MSMED Act itself says any person whose books of accounts are required to get audited under any law makes the provision of interest outstanding along with the principal outstanding. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, whether any TDS requirement on this particular interest part? अब इंटरेस्ट पे TDS तो है तो सही, क्या इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे भी TDS काटना रहेगा? जो MSMED वाला इनएडमिसिबल इंटरेस्ट तो हो गया साहब, पेमेंट भी कर दिया आपने, वो डिडक्शन भी नहीं मिला, पर क्या वो TDS की लायबिलिटी भी आएगी क्या हमारी इंटरेस्ट पेमेंट करते समय? एनी इंटरेस्ट TDS लायबिलिटी ऑन इंटरेस्ट, मेरे ख्याल से आंसर है नहीं, आ नहीं रहे। मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट, इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे TDS का लायबिलिटी नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम फास्ट, 10 मिनट के अंदर हम कोशिश करके कवर करेंगे, 10 से 15 मिनट के अंदर। फिर 27 ए क्लोज, नहीं शायद कुछ बीच में, हाँ 25 नंबर क्लोज, एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 41, राइट, मेरे ख्याल से ये आप सभी जानते हैं। 41 के अंदर अगर कोई क्लोज, अगर कोई बिजनेस इंस्पाइट की वो बंद भी हो गया, पुराना ट्रेडिंग लाइबिलिटी को हमने रेमिट किया उसको, रेमिट किया उसका, हटा दिया, तो इंस्पाइट ऑफ दैट की बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा, सेक्शन 41 की बात करें तो वहां पे भी टैक्स लगेगा 41 के अंदर। तो उसी के अंदर पूछा गया है कि नेम ऑफ द पर्सन, अमाउंट ऑफ इनकम, सेक्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजेक्शन, कंप्यूटेशन अगर कुछ किया हुआ है वो सब आपको देना रहेगा। क्योंकि क्या रहता है, सपोज करो आपने 4 साल पहले कुछ एक्सपेंडिचर क्लेम किया था और वो ट्रेडिंग लाइबिलिटी थी, क्रेडिटर्स थे, और आपने राइट ऑफ कर दिया अभी कि भैया नहीं देंगे अब तो बिजनेस चल रहे, तो वहां पे वो लाइबिलिटी भी अराइज होगी। अब बात आता है, एक पॉइंट और आता है इसमें अंदर, बेड डेट्स रिकवर्ड का। 41 सेक्शन है, इसमें क्लोज तो एक ही दिया गया है, बेड डेट्स रिकवर्ड का। मेरा देखो, मैं यहाँ पे आपके सामने, सबके सामने क्वेश्चन डालता हूँ। बेड डेट्स
क्लेम्ड 100 रुपीज, मैं इंटर करके आपके सामने रख रहा हूं, एक्सेप्टेड और अप्रूव्ड मान लो आप, कुछ भी मतलब जो अप्रूव हुए या एक्सेप्टेड हुए, अलाउड हुए, वो थे 60, राइट। अब क्या हुआ, 2 साल बाद बेड डेट्स रिकवर्ड, बेड डेट्स रिकवर्ड हो गए 30 रुपीज के। नाउ थोड़ा स्पेलिंग इग्नोर करिएगा, नाउ टैक्सेबिलिटी ऑन रिकवर्ड बेड डेट्स, आपके सामने मैंने मेरे ख्याल से सभी को गए, एवरीवन ही सिलेक्टेड है शायद, नहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, हाँ एवरीवन। बेड डेट्स हमने क्लेम किए थे एसएससी ने 100, पर वो अलाउड जो हुए, अब एक्सेप्टेड अप्रूव्ड अलाउड 60 थे। अब क्या हुआ, 2 साल बाद में बेड डेट्स रिकवर्ड हो गए 30। टैक्सेबिलिटी जो बेड डेट्स रिकवर्ड हुए कितनी आई, ऑन व्हाट अमाउंट, सेक्शन 41(5) आई बिलीव, या 4 है या 5 है, ऐसा ही है। ऑन रिसिप्ट बेसिस, ठीक है, रिकवर हुआ, मैं वही कह रहा हूं, वो रिकवर हुआ 30 रुपीज का, तो टैक्सेबिलिटी ऑन व्हाट अमाउंट, ऑन 30। एनी अदर आंसर? किशन जी, रियली थैंकफुल फॉर prompting every time. Any other answer on that particular part? Waiting for few seconds, क्योंकि हम ज्यादा वेट भी नहीं कर सकते, फास्ट फिनिश भी करते हैं। देखो, मैं नथिंग विल बी टैक्सेबल, टैक्सेबल, राइट, स्पेलिंग इग्नोर करिएगा, नथिंग विल बी टैक्सेबल। रीजन बीइंग, किशन जी, स्पेसिफिकली आप देखिए 100 हमने क्लेम किए, शायद 40 अलाउड की थी, 60 अलाउड हुए एंड 30 रिकवर हुए, तो आप देखिए वो 40 का जो पार्ट थे अलाउड, वो 40 ऑलरेडी टैक्सेबल है, तो हम जो रिकवर हो रहा है उसी 40 का पार्ट मान रहे हैं। इसका एक अगर हम फॉर्मूले के बेसिस में भी याद करें, अमाउंट रिकवर्ड माइनस अमाउंट नॉट अलाउड, अगर हम सीधी सी बात करें, राइट, तो अगर हमारे पास 50 रुपीज रिकवर हो रहे हैं यहाँ पे, तो टैक्सेबिलिटी की जब बात आती है, अगर इन केस 50 रुपीज रिकवर हो रहे हैं, रिकवर्ड 50 रुपीज, देन आई बिलीव हाउ मच अमाउंट will be taxable? 10 rupees only. या परफेक्ट किशन जी, नो वरी, ये डिस्कशन पार्ट है, मैं भी कई चीजें भूल जाता हूँ, खतरनाक वाली बात। नाउ 10 रुपीज मेरे, हाँ, रियली ग्रेट अनिल जी, दैट 10 विल बी टैक्सेबल, तो ये हमें ध्यान रखना है। नाउ अब मैं आगे पहुंचता हूँ 27 ने, यहाँ एक डिस्कशन पार्ट है हमारे सभी से, जैसे हम क्या कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पार्ट पे, शायद किशन जी, अनिल जी, जो हमारा 27A वाला पार्ट है, अमाउंट ऑफ सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स क्रेडिट, सॉरी बिकॉज ऑफ सम प्री ऑक्यूपेशन, मैं नहीं तो स्लाइड पे ये क्लोज लेने चाहिए थे मेरे को, स्टिल नो, थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द प्री ऑक्यूपेशन मैं सीधा रीड आउट कर रहा हूँ, और होप सो आपके सामने क्लोज को रीड आउट कर रहा हूँ। अमाउंट ऑफ सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्सेस, input tax credit, earlier it was not there, input tax credit, availed of or utilized during the previous year, and its treatment in the P&L account and treatment of outstanding ITC in accounts. अब यहां पे ट्रीटमेंट की जब बात आती है कि ट्रीटमेंट करना भी चाहिए या मोस्टली नोट अप्लीकेबल छोड़ रहे हैं, कुछ भर नहीं रहे, पर अगर भर भी रहे हैं तो फिर इसमें क्या हमारी तरफ से ट्रीटमेंट रहना चाहिए। देखो, आईटीसी मेरे ख्याल से अब आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द जीएसटी पोर्टल इटसेल्फ। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ओपनिंग बैलेंस आईटीसी का पूछा, अवेल्ड हमने किया वो ठीक है, यूटिलाइज, तो जो क्लोजिंग बैलेंस है should it get tallied with the balances which is shown under ITC ledger of the portal? Is it?
क्या जो पोर्टल पे आईटीसी लेजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स क्रेडिट लेजर, क्या उससे टेली होना चाहिए? क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है, क्या पोर्टल के उससे टेली होना चाहिए? नो, परफेक्ट किशन जी, नहीं, जरूरी नहीं है, बट बुक से आपके जरूर टेली होना चाहिए। नॉट पॉसिबल समटाइम, यस। नमस्कार विपिन जी, यस, ये इट शुड गेट टेलीड विद द बुक्स, क्योंकि जो यहाँ आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो बुक्स के अकॉर्डिंग आप दीजिए। मैं रीजन भी बताता हूँ उसमें। लास्ट लाइन देखिएगा, इन अकाउंट्स लिखा हुआ है, इन अकाउंट्स। आप अकाउंट्स के अकॉर्डिंग रखिए, और वो फिर जो क्रेडिट लेजर, इनपुट का क्रेडिट लेजर का हम ऑलरेडी रिको तो बना ही रहे हैं, वो रिको हमारे पास, जैसा कि किशन जी कह रहे हैं, वो रिको हमारे पास होना चाहिए। दैट शो कि भैया जो अकाउंट्स का हमने जो क्लोजिंग बैलेंस लिया है, वो इन एडजस्टमेंट के बाद में जो क्लोजिंग बैलेंस है हमारा जीएसटी के अंदर, उससे टेली होता है। हाँ, राइट। इवन वी ऑलवेज सी अनिल जी कि हम 2-3 रिको तो जीएसटी के अंदर बनाते हैं, जीएसटी R1, 3B और आईटीसी भी साथ में ही बनाते हैं, जो हमारा पोर्टल पे दिखाई दे रहा है, जो हमारे बुक्स में दिखा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं अदरवाइज तो उसको मैच करना बड़ा मुश्किल रहेगा आने वाले टाइम पे। तो वो सिमिलर फ्रंट पे ही हमारे पास अगर बुक्स प्रॉपर है, और अगर नहीं भी मिल रहा आगे के सालों में, हमने क्लेम किया, जैसे लिखा अनिल जी ने कि भैया चलो आईटीसी वहां अलग आ रहा है क्योंकि बुक्स के अंदर हमने पहले दिखा दिया, जीएसटी रिटर्न के अंदर हम बाद में दिखा रहे हैं, तो वो तो रीजन रहेंगे ही रहेंगे। रिवीजन का ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो हम केवल अभी रिको ही बना रहे हैं। और वैसे भी नाम गवर्नमेंट ने इसका रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ही रखा, वो सही रखा है, ऑडिट वाला पार्ट नहीं रखा। लेट इट भी, हम उस पर नहीं जा रहे, नहीं अभी हम दूसरी बात पे आगे बढ़ जाएंगे, रादर देन डिस्कशिंग ऑन टैक्स ऑडिट, राइट। नाउ अब बात करते हैं, थोड़ा सा फास्ट कवर करता हूं, 1-2 पॉइंट और लेते हैं, फिर डिस्कशन पे जाएंगे। किशन जी का भी एक पॉइंट था उसमें, रिपोर्ट में हम देखते हैं वेदर एनी, ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से अदर सोर्सेज है 56, मेरे ख्याल से कोई सा तकलीफ वाली बात नहीं है। नाउ 31 पॉइंट जो है हमारा, पर्टिकुलर्स ऑफ ईच लोन, 31A, डिपोजिटेड इन अमाउंट एक्सीडिंग द लिमिट specified in section 269 SS taken or accepted during the previous year, right? Particulars of each loan or deposit in amount exceeding 269 SS taken or accepted during the year, right? हम जानते हैं 20,000 की लिमिट है, एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द ईयर। हम जब ये बात करते हैं तो ये एक्चुअली जो पेनल्टी है एक्सेप्टेड, वो तो ठीक है। जब हम 269T की भी बात करेंगे, पेमेंट पे पेनल्टी है, समझ रहे हैं? एक्सेप्टेड और पेमेंट की जब दोनों बात आती है, और जब हम डिस्कशन के पास आते हैं, तो वहां पे एक डिस्क्लोजर जरूर मेरे ख्याल से हम सभी दे रहे हैं कि भैया अब हमको पता ही नहीं लगता कि वो अकाउंट पे ही चेक का, बिना अकाउंट पे ही चेक का क्या है। तो नॉर्मली ये डिस्क्लोजर हमारी तरफ से ऑब्जर्वेशन के अंदर रहना चाहिए कि नेसेसरी, जो हम नॉर्मल स्टैंडर्ड लाइन लिखते हैं, मेरे ख्याल से सभी के पास भी होगी, और जो नहीं भी लिख रहे हैं वो आप जरूर इसको रेफर करते हुए लिखें इस पर्टिकुलर क्लोज के लिए, कि नेसेसरी एविडेंस नोट इन द पोजीशन ऑफ द एसएससी, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू वेरीफाई वो अकाउंट पे ही चेक है या नहीं है। 20,000 वाला क्लोज, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इधर वहां हमारा वाला, वो वाला क्लोज भी हमने डिस्कस किया, जो टैक्स ऑडिट का प्रोविजो था, 44A वाला जो प्रोविजो था, और यहां भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन हमारी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर 3 और 5 क्लोज जो है, 3CA का, 3CB का, उसके अंदर हम प्रॉपरली इंसर्ट करते हैं। देखो, हम बीइंग ऑडिटर हमारी जितनी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर पाए उतना अच्छा है। नेक्स्ट, सिमिलरली फ्रंट पे फिर क्या होता है, एक स्पेसिफाइड सम है। देखो, इस पे हम ज्यादा डिस्कस वैसे नहीं कर रहे, क्योंकि अब स्पेसिफाइड सम के बारे में बोला। नेक्स्ट पॉइंट ये, स्पेसिफाइड सम क्या है? स्पेसिफाइड सम आपको पता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भी अब आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते कैश में, तो उसके स्पेसिफाइड सम उसी से रिलेटेड है, उसके केस में भी अब आप वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछी है, स्पेसिफाइड हुआ कि नहीं हुआ, वो डिटेल हमें देनी रहेगी, मेरे ख्याल से हम सब देते हैं, राइट?
अब आता है 31BC, उसमें भी क्या है जो हमारा एसटी वाला पार्ट है, एसटी वाला पार्ट वो 2 लाख रुपीज वाला, कि भैया किसी इवेंट से रिलेटेड है, पर्टिकुलर डे के अंदर है, वो सब क्लोज इसके अंदर भी पूछे। तो particulars of each payment made in amount exceeding the limit specified 269 ST, राइट। तो उसके पर्टिकुलर हमें देने हैं, अकाउंट पे ही चेक से है कि नहीं है, वो सारी चीजें हमें कवर करनी रहेगी, राइट। नाउ अब एक पॉइंट पे आता हूं, इसमें कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर टीडीएस के अंदर हम क्या डिस्क्लोज करें, अमाउंट डिस्क्लोज करें नहीं करें। जो हम क्लोज नंबर 34 की बात कर रहे हैं, देखो क्लोज 21B2 मैं आता हूँ, एक बार लास्ट में देखते हैं, पहले एक बार हम इसको कवर करते हैं, नहीं अदरवाइज टाइम पे एक दो क्लोज मेरे को और कवर करने, फिर किशन जी हम इसको फिर अपन देखते हैं, आइदर इस तरह नहीं, मैं मोबाइल नंबर अपन वैसे सेपरेटली डिस्कस करेंगे। टाइम पे हम क्लोज करते हैं एक बार और फिर कवर करते हैं क्वेश्चन आंसर। 34A, whether the assessor is required to deduct or collect tax as per the provision of section, जो भी टीडीएस वाला है, चैप्टर, सॉरी सेक्शन नहीं चैप्टर। यहां पे देखिए 3 कॉलम पे मैं एम्फेसाइज करूंगा। देखो पहला कॉलम है सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम है टीडीएस का नंबर जो है 10 नंबर, थर्ड है सेक्शन। अब आइए फोर्थ कॉलम से, नेचर ऑफ पेमेंट, सैलरी मेरे पास इसमें लिखा हुआ, उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ भरा हुआ आइटम है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर्स हो कुछ भी हो। नेक्स्ट अमाउंट वो कॉलम आता है टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट और रिसिप्ट ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन कॉलम 3। मतलब 3 नंबर कॉलम जो आपने नेचर दिया है, चाहे सैलरी दी हो चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो, उसके अंदर आपने टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट क्या दिखाया है। लेट्स अज्यूम 1 लाख रुपीस। नेक्स्ट कॉलम जो है टोटल अमाउंट ऑन विच टैक्स वाज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। अब जरूरी नहीं है जो अमाउंट आपने सैलरी के अंदर 1 लाख रुपए दिखाया है उसके 1 लाख पे ही टीडीएस कटा जाए। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैंने ली है, हो सकता है उसमें 10,000 वाली सैलरी या 10 लाख मान लीजिए, 10 लाख में टोटल सैलरी आई, उसमें हो सकता है एक बंदे की सैलरी ऐसी थी कि उसको केवल 2 लाख ही मिल रहे थे, तो जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर टीडीएस कटा जाए। उसमें से आउट ऑफ 10 लैक्स क्या पूछा है कि टोटल अमाउंट ऑन विच टैक्स वाज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड और कलेक्टेड आउट ऑफ 4, मतलब कि जो ये 10 लाख है उसमें से कितना अमाउंट है जिसपे टीडीएस होना चाहिए था। बीइंग अ टैक्स ऑडिटर मेरे से पूछा जा रहा है। अब यहां पे आप जो अमाउंट दे रहे हैं, मान लीजिए 8 लाख रुपए आपने दिया कि भैया 10 लाख टोटल सैलरी थी। अभी इनको डिराइव कैसे करना उस पर भी आता हूं। उसमें से 8 लाख अमाउंट था जिसपे टीडीएस कटना था। नाउ नेक्स्ट जो कॉलम पूछा गया है वो पूछा गया है टोटल अमाउंट ऑफ विच टैक्स वाज डिडक्टेड और कलेक्टेड। अब इस पे जो अमाउंट है रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड कितने अमाउंट पे कटना था और वाकई में कितने अमाउंट पे कटा। अब यहां पे अगर डिफरेंस है, ऑडिटर से पूछा है भैया आप 10 लाख में से कितने पे कटना चाहिए था, जी साहब 8 लाख पे कटना चाहिए था, पर एसएससी ने काटा कितने पे, जी 6 लाख पे, 2 लाख डिफरेंस अब वो कैप्चर किया जाएगा। यहां आप ध्यान रखेंगे जो दोनों हमारे कॉलम है रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड और एक्चुअली डिडक्टेड, वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में सिमिलर होने चाहिए। जो टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट है वो जरूरी नहीं सिमिलर हो कि नहीं हो। नेक्स्ट कॉलम आता है कि अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और टोटल अमाउंट ऑन विच लोअर साइड रेट जो है लेस देन, उस पे आप कितना रहा, तो वो भी यहां पे वो अमाउंट डालना रहेगा। तो इस तरीके से 4-5 कॉलम जो है ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना। कई बार कंफ्यूजन ये होता है भरने में, जल्दी जल्दी में भर दिया कि भाई टोटल अमाउंट है वो भी सेम सिमिलर भर दिया, जबकि इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है। आज के टाइम पे बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें बहुत सारी चीजें हैं जो वाकई में हमें अपने को बचा के रखनी है, राइट। आगे बढ़ता हूं, तो ये कॉलम आप प्रॉपर भरें। अच्छा अब बात आती है कि सर इसमें
चेक कैसे करें? देखो टेली के अंदर एक नॉर्मली हम मोस्टली टेली यूज करते हैं, उसके अंदर जब आप स्क्रूटनी करते हैं तो एक कोलुमिनार करके व्यू खुलता है कि मतलब आपने पर्टिकुलर सपोज करो एक पार्टी ओपन की, अब पार्टी को जितने भी ट्रांजेक्शन हुए उनको एक कोलुमिनार ईच हेड वाइज पेमेंट और एक्सपेंसेस वाइज एक लंबा सा खुल जाता है, उसमें आप इजीली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि भैया यार ये पर्टिकुलर एक्सपेंसेस बिल आया था, बुक हुआ, परंतु टीडीएस नहीं है, ये बिल आया, इस पे टीडीएस है। तो उसको कोलुमिनार व्यू में जब आप डालेंगे, टेली की बात करो स्पेसिफिकली, ईआरपी का तो सबका अपना अपना सिस्टम है, नॉर्मली टेली के अंदर हम ये सब फंक्शनैलिटी कोलुमिनार व्यू के अंदर आप देख सकते हो। तो वहां से आप आइडेंटिफाइड कर सकते हो कि जो ये कंप्लायंस है टीडीएस की, क्योंकि हमारे लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट और डिस्क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड करना नहीं करना बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि टीडीएस एक इंपॉर्टेंट लाइबिलिटी है। राइट, हम लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन आंसर, क्योंकि आई बिलीव 10 मिनट ही बाकी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं रेशियोज पे। अगर लास्ट ईयर अगर कोई बिजनेस ही नहीं है तो रेशियो देने की जरूरत नहीं है, बाकी रेशियोज हम देने में हमें कोई मेरे ख्याल से दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बाकी ठीक है, राइट, फाइन इनफ। जो फॉर्म एसएफटी के बारे में कुछ डिक्लेरेशन मांगी गई है 61A वगैरह के बारे में, जो पॉइंट नंबर 42 है उसके अंदर हम एसएफटी की डिक्लेरेशन वगैरह दे सकते हैं कि रिपोर्टिंग पर्पज है, फंडिश था, डेट्स वगैरह, डिटेल्स वगैरह थे कि नहीं थे, वो सब सारी चीज़ें हम आराम से भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से हम 10 मिनट रखते हैं हमारे लिए, ऑलमोस्ट हम 10 मिनट ही मेरे ख्याल से अभी बचे हुए हैं, तो थोड़ा सा रखते हैं। बाकी तो हम इस सेशन के बाद में भी कनेक्ट, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे जा सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माय साइड। विल बी देयर टैक्स ऑडिट ऑफ ए खादी संस्थान इफ टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़। अच्छा, जितेंद्र जी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, खादी संस्थान के ऊपर टैक्स ऑडिट होगी कि नहीं होगी? आप बताइए, होगी कि नहीं? एनी आंसर? और मोर देन 1 करोड़ से एनी आंसर? खादी संस्थान, एनी स्पेसिफिक खादी संस्थान पे? किशन जी, यस। थैंक यू किशन जी एंड जितेंद्र जी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ग्रेट सेंस। जितेंद्र जी, आई डोंट थिंक कि वहां कोई ऐसा टैक्स ऑडिट के लिए कोई कहीं पे भी एग्जम्पशन दी गई है। 1 करोड़ के ऊपर है, हाँ, नो डाउट। आप अगर 44A की बात कर रहे हैं तो वो आप 5% वाला क्लोज आप जरूर देख लीजिए। अगर वहां पे अगर क्लियरिटी है तो ऑडिट नहीं होगी, अदरवाइज तो है ही है। टैक्स ऑडिट में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनी अदर क्वेश्चन दैट वी कैन टेक अप? आप क्वेश्चन डालिए, मैं पर्टिकुलर क्लोज जो किशन जी का था मैं ओपन करता हूँ। Any other question we can take up? I'm just opening the particular clause that is Kishan ji is talking about. Wait for a while. Meanwhile, you can put your queries in the chat box. I'm just checking it out. Close number. अच्छा, शायद कोई क्वेश्चन आया है मीनवाइल। सर, कैन ब्रीफ क्लोज नंबर 12? हाँ, ये इम्पोर्टेंट सेक्शन, बड़ा अच्छा अनिल जी। Whether the profit or loss account includes any profit and gains accessible on presumptive basis, if yes, indicate the amount and relevant clause section. बड़ा अच्छा क्लोज है कि भाई क्या सर, जब टैक्स ऑडिट हो रही है। अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड, एक पर्टिकुलर
एसएससी के दो प्रोप्राइटरी फर्म है। अब 5% वाला क्लोज भूल जाना। एक का टर्नओवर 80 लाख है, एक का है 30 लाख। दो प्रोप्राइटरी, क्या ऑडिट होगा क्या? एक एसएससी, उसकी दो प्रोप्राइटरी फर्म, अलग अलग नाम से, जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी सेपरेट है। एक का 80 लैक्स है, एक का 30 लैक्स है। हम एक बार 1 करोड़ ही लिमिट ध्यान में रखते हैं, वो 5% वाला क्लोज ऑडिट होगा। रीजन बिंग, क्योंकि अनिल जी बोल रहे हैं कि जी पेन वाइज है, हम एसएससी वाइज है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये आता है कि अब ये फिर क्लोज का रिलेवेंस क्या आता है 12 नंबर का, वेदर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स एनी प्रॉफिट ऑन गेन्स ऑन प्रेजम्पटिव बेसिस। अब भैया जब ऑडिट होनी है तो प्रेजम्पटिव बेसिस में कैसे क्लोज आ सकता है? कैन एनीवन कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव आंसर? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो इस क्लोज पे 12 पे, कि जब ऑडिट होनी है सर, एक बात बताइए, जब ऑडिट होनी है तो पूरी होनी है तो फिर प्रेजम्पटिव का क्लोज कैसे आएगा? देखिए कई बार क्या होता है कि 4484 है, उसके कारण भी ऑडिट हो जाती है। आप समझ रहे हैं, बाहर निकल के ऑडिट हो रही है पर उसमें भी फिर आप प्रेजम्पटिव। हाँ काइंडली रेज, अच्छा हाँ मैं बीच में भूल गया, काइंडली रेज द हैंड, शायद थैंक्स अ लॉट जयपुर ऐसे ब्रांच की, आप हैंड रेज कर सकते हैं कि भाई इसका रिलेवेंस क्या रहता है। वैसे मैं बोल तो गया, इसका रिलेवेंस क्लोज का क्या है 12 नंबर का। मैं फास्ट एक बार वो भी देख लेता हूँ, वेटिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स, फिर हम क्लोज भी करते हैं। वी आर वेटिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स। B2 मेरे पास आ गया, B2 नॉन रेजिडेंट B2 B2 आ गया B2। नाउ हम आते हैं उस पर, शायद आंसर नहीं आया कि जैसे 4484 में होता है तो उसके कारण भी सपोज करो ऑडिट हो रही है कि भाई आप वैसे तो ऑडिट में नहीं है पर 84 से बाहर है, परंतु फिर भी कुछ प्रेजेंटिव टैक्सेशन उसके साथ में कुछ हो रहा है, तो फिर आप उस पर्टिकुलर क्लोज के लिए अप्लीकेबल है। नेक्स्ट मेरा जो अब क्वेश्चन था, जो शायद किशन जी का था, मेरे सामने 21(2) क्लोज अप्लीकेबल है। डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड, डेट ऑफ पेमेंट, अमाउंट ऑफ पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट, नेम ऑफ द पेई, पेन ऑफ द पेई, आधार ऑफ द पेई, कंट्री, एड्रेस लाइन। नहीं इसमें कुछ स्पेसिफिक, या तो हम मेरे ख्याल से बाद में डिस्कस, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है क्या आपका किशन जी? मैंने ओपन तो किया है सॉफ्टवेयर में, अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट है तो कुछ फिल करने के लिए। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, हाउ टू रिसीव 30% दे, नहीं नहीं यहाँ तो आपको डिडक्शन 30% तो वहां से ऑटोमेटिकली ले लेगा ना किशन जी, वो तो ऑटोमेटिक है। हमें तो जितना पेमेंट हुआ, जिसपे टीडीएस नहीं कटा उसकी पेमेंट डालनी है, 30% का यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई है वो हम डालेंगे केवल। ये प्रॉब्लम आ रही है।
ये प्रॉब्लम आ रही है। 143 1A की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है दैट वी आर फेसिंग अप। अभी तक कुछ ऐसा नहीं था कि प्रॉब्लम, अब कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और हम रेक्टिफिकेशन पे भी जा रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ इस पे आप रेक्टिफिकेशन जुरिस्डिक्शन पे भी जरूर फाइल करें। और मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चन है नहीं, तो मैं वेटिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स। मैं आपको 1 मिनट रुको शायद। यस, पर फिर भी मैं क्लोज, एक बार शायद क्लोज वही रीड कर पा रहा हूँ, कहीं कंफ्यूजन नहीं है। हम कनेक्ट होते हैं किशन जी एक बार, शायद कुछ और मैं कुछ गलत तो कन्वे से तो मैं शायद सही जा रहा हूँ। ओवर टू यू आईसीआई ब्रांच। फॉर्मेट में कहीं प्रॉब्लम है, पूरा क्लियरली देना चाहिए, दैट्स फाइन इनफ। अमाउंट जो इनएडमिसिबल होता है वो पूरा ही हो, एक्चुअली अमाउंट जो है वो इनएडमिसिबल है। Priya ji, we are waiting for few seconds. If there is any other question, otherwise I will hand over to you. So thanks a lot once again to all of you for listening so patiently. Over to you, Priya ji. Thank you, sir. Thank you for such a knowledgeable and most interactive session. And with this, today's webinar comes to an end. Thanks to all listeners for being the patient listeners for the day. Thank you. Jai Hind, Jai ICAI. There has Thanks a shared lot. his mail ID, for further references or If you, yes, exactly. If you have, Kishan ji, I believe we have discussed, but still, is anything else? We can connect to the WhatsApp as well. I believe शायद कुछ मिस नहीं कर गया हूँ मैं. Thanks a lot.